we had started demand forecasting chapter or the unit, right, in the last lecture. So demand forecasting is a science and art of predicting probable demand for your product in the future, right, on the basis of some specific trends in the past. So we will check that the trends in the past and we will predict the future demand for our product. And that process is called as demand forecasting. Demand forecasting is not guesswork actually. We will be using many scientific uh, methods by which we will be like forecasting the demand. Then there were many like ways demand forecasting is useful, like it helps in planning and decision making, like planning your production, planning your um, procurement of the raw material, right, planning your advertisement strategy, then and taking the decisions on, right, to execute those planning. It is for the process selection, which kind of process you want to follow, like labor intensive process or uh, the capital intensive process. It depends, like आपको कौन सी process follow करनी है. It depends on the demand forecasting. Suppose demand is very huge and you have very less period of time, then you will go for the like capital incentive process. या आप the right machineries, heavy plant and equipments install करोगे and then you will produce them. Capacity planning, right? At which capacity you want to work. If you are forecasting a higher demand, like then you will go for the expansion. If your present capacity is not sufficient to meet that higher demand, then you will like be going for the expansion. Like example, automobile sector is expecting EVs, right? Electronic vehicles. So now they have curtailed down their production of the like diesel driven or petrol driven cars. Now they are planning for installing or expansion of the electronic vehicles like manufacturing plants. So it depends what should be your capacity, right? आपने क्या expand करना है, क्या curtail down करना है, depends on your demand forecasting. So if you are forecasting that your demand will be not that much great, then you may curtail down the some of the operations. You may lay off some of the employees. Depends. So capacity planning. Then comes facility layout. That is your like how you are going to carry on your business. Like आप branches open करने वाले हो, agency open करने वाले हो, या like electronic platform पे आप customers को product available करवा के देने वाले हो. Depends like how your layout will be. Like that is supply chain basically we are talking about. Right? वो कैसे रहेगी, factory outlet वगैरह कैसे रहेगा, right? So all those things will be decided on the basis of the forecast. Inventory management. So inventory management means we should produce that only that much quantity which is demanded by the customers. There should be no excess production or there should be no underproduction, because both involves losses. Excess production ke case mein we have to carry that inventory. Even there's a cost of carrying the inventory. If we produce less than what is demanded, in that case we are losing the customers. Try to understand. So we have to make the perfect like projection, accordingly हम goods produce करेंगे. उसके लिए हमें raw material भी purchase करने होंगे. तो right, inventory management is from the procurement of the raw material till the final goods are sold. ये पूरी एक जो chain रहेगी उसको हमें manage करना होगा. उसके लिए demand forecasting important रहेगी. Right, it provides relevant information while preparing the budgets, and it helps, that information helps in cost control. बजट करना है तो हमने बोलते बजट इज एक्सपेक्टेड रेवेन्यू माइनस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेक्टेड profit or expected cash flows. So we are preparing the budget, and for that purpose when we are talking about the revenue front, we must know the forecasted demand. So expected sales पता होना चाहिए. To arrive that at that figure we must know the demand that, right, the customers will be making in coming future. So for that purpose, for the preparation of the budgets and even for the cost control, we require some of the important information. That information is provided by your demand forecasting process. Even we have to decide the pricings, and we have to accordingly we have to come with the advertisement strategy. If you are looking at great demand,
then you may not focus that much on advertisement. But if you're feeling that there will be no demand, then you will go for the aggressive advertisement. You will try to reach each and every customer over there. So आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? अगर डिमांड कम है तो यू विल गिव मोर डिस्काउंट्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. अगर डिमांड कम है तो यू विल गो वेरी एग्रेसिव इन द मार्केट, राइट? एडवर्टाइजमेंट करोगे. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन like demand forecasting. The pricing policies and advertisement policies or strategies will be dependent on the demand forecasting. That was the usefulness of the demand forecasting. Demand forecasting can be done, right, at any level. I mean, it can be done at a local level. Means like if a firm is operating in the local market, it is a local firm, its targeted customers is a local customers, local base hai. They can also go for the demand forecasting. At the same time, the international firms which are operating across the globe also goes for the demand forecasting to forecast the demand for their product. So it can be at any level of operation, small level of operation or very large level of operation. Then it can be done for the current operations, present operations, at the same time, right, the future operations. So if you're coming with a different facility, you're coming with a different product, right? In that case, you can like predict the demand for that product, because you have to take the decision whether you should go for that product or not. You must know like what is expected revenue, what is expected expenses. आप budget करोगे, उसके लिए we need the data. So I can say demand forecasting helps you to predict demand for the current plans as well as the future plans. So it can be operated at any level, small level, at the same time international level, right? Any firm, local firm as well as international firms can go for the demand forecasting. They use basically the principles or the techniques of the demand forecasting. At the same time, demand forecasting can be done, right, for the current plans as well as the future plans. But whenever you do the demand forecasting, you must understand demand forecasting comes with some cost. It is not free. हमें अगर demand forecast करनी तो we have to reach to the customers, we have to appoint our sales representative, may we appoint experts to forecast the demand, right? It involves cost, it involves time. So we have to understand there is a cost associated with the forecasting the demand, and वो demand से जो हम जो cost incur करेंगे उससे जो हमें information मिलेगी, is that useful? मतलब उसके जो benefits मिलने वाले हैं, we have to compare with the cost incurred to get that benefits. If the benefits are more than the cost, then right, you can always go for the demand forecasting. But the cost is more than the benefits that accrue. In that case, there is no point in incurring the cost unnecessarily. Better, right, don't go for the demand forecasting. Means whenever you go for the demand forecasting, you must understand the cost benefit analysis. आपके लिए वो सौदा फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये आपको समझना है. ठीक है? Then types of demand forecasting. मैंने बोला demand forecasting can be done at macroeconomic level, macro level forecasting. So it deals with general economic environment prevalent in the economy. Means we do the demand forecasting at macro level, means at the industry level or at a firm level. When I say at a industry level, so we are forecasting the demand of a product for a given industry, right? So automobile sector के लिए demand forecasting कर रहे हैं, like construction sector के लिए हम demand forecasting कर रहे हैं, हम टेलीकॉम सेक्टर के लिए डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं, राइट? टेलीकॉम सेक्टर की हम डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं, लाइक दैट. सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, हम उनके लिए डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं. तो इसमें ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑल फर्म्स आर पुट टुगेदर एंड सबके लिए हम डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं. तो इंडस्ट्री लेवल डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं. एंड दूसरा होता है फर्म लेवल डिमांड फोरकास्टिंग, मींस फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट ऑफ ए फर्म फ्रॉम दैट इंडस्ट्री. सो अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड फोरकास्ट कर रहा हूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, तो forecasting the demand for Tata Motors individually is a firm level demand forecasting. और forecasting the demand for like Hyundai या Toyota, उनके लिए इंडिविजुअल फर्म के लिए जब हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं उसको बोला जाता है फर्म लेवल डिमांड फोरकास्टिंग. अगर मैं सीमेंट इंडस्ट्री की राइट अगर डिमांड फोरकास्ट कर रहा हूं, उसमें से एसएससी, बांगर सीमेंट, इनके लिए अगर मैं डिमांड फोरकास्ट कर रहा हूं, तो इट इज अ फर्म लेवल डिमांड फोरकास्टिंग.
अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर की कर रहा हूँ, एयरटेल की डिमांड, जियो की डिमांड, वोडाफोन आइडिया की डिमांड या बीएसएनएल की डिमांड, अगर उनकी इंडिविजुअल फर्म की मैं डिमांड असर्टेन कर रहा हूँ, फोरकास्ट कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग लाइक फर्म लेवल demand forecasting. One should also understand why we do that, because if we have to enter into the market, if we have to start a new operation, we must know कि वो इंडस्ट्री ग्रो होगी या नहीं होगी. अगर वो इंडस्ट्री ग्रो होगी, then there is an opportunity, then there is a point in entering into that industry. Otherwise, right, हमने वो इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए. Otherwise we are unnecessary investing in the like donkeys, I will say. जो गधे उन पे इन्वेस्ट करने से जो घोड़ा है उस पे इन्वेस्ट करने इज ऑलवेज गुड. सो जो इंडस्ट्री एक्सपांड होने वाली है, जिसकी ग्रो होने वाली है, उसकी डिमांड इंक्रीज होने वाली है, उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना. लाइक इंश्योरेंस सेक्टर हैज ए ग्रेट लाइक फ्यूचर इन इंडिया, बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में उतना लाइक है ही नहीं, उतना प्रेजेंस नहीं. लाइक इफ यू कंपेयर विद अदर सेक्टर्स, इंश्योरेंस सेक्टर पीछे है. सो इफ यू टू इन्वेस्ट, यू मस्ट नो द विच सेक्टर आगे जाके चलेगा. उसमें अगर आप करते हो तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री. एक सेक्टर, एक इंडस्ट्री जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिसकी डिमांड ग्रो होने वाली है, उस सेक्टर में बिजनेस करना इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल. एंड उसमें मेरा कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब मार्केट शेयर में मेरा मार्केट शेयर ढूंढ रहा हूं. सो माय फर्म शेयर डिवाइडेड बाय इंडस्ट्री शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूं. इन दैट केस आई विल नो माय मार्केट शेयर, माय प्रेजेंस. सो वी से जियो एंड एयरटेल dominates telecom sector because their market share is relatively more, 30-35% suppose उनका market share है दोनों का. So we call them as a market leader. अगर बैंकिंग में जाते हो तो SBI is a dominant because उनका market share is more. अगर नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स देखते हो, अगर आप अकाउंट होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो मैक्सिमम अकाउंट होल्डर्स आर विद SBI. अगर आप नंबर ऑफ ब्रांचेस के हिसाब से देखते हो तो नंबर ऑफ ब्रांचेस आर ऑफ द SBI. तो लाइक आप इंश्योरेंस में भी देखोगे तो आपको लाइक LIC का मेजर स्टेक दिखेगा, LIC मेजर प्लेयर दिखेगा, बिकॉज उनका मार्केट शेयर इज वेरी लार्ज. व्हाट डू बाय मार्केट शेयर? फर्म शेयर इन द मार्केट डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट मल्टीप्लाई बाय 100 is a market share. So firm forecasting at a industry level, forecasting at a firm level. At the same time, forecasting can be done on the basis of the time. Like if you are doing the forecasting for less than 1 year, we call it a short-term demand forecasting. For making a tactful decisions, we can go for the short-term demand forecasting. However, if you have to take the strategic decisions like expansion or curtailing down the activities, right? आपको abroad जाना है नहीं जाना है, example मतलब long term के decisions लेने हैं, तो obviously strategic decisions लेने हैं. In that case, it is right. The firm goes for the long term, a long run demand forecasting. Generally, it is like 3 years, 4 years, 5 years down the line. So, demand forecasting in the short run, tactful decisions के लिए useful है. Demand forecasting in the long run is good for the strategic decisions. फिर मैंने बहुत सारे types of goods या types of demands मैंने discuss किए. Right? I won't revise that because ये आपने बहुत बार किया भी है. Next is the methods of demand forecasting. Basically, there are some methods. First method that we learned is survey of buyer's intention. हम सर्वे करेंगे, किसका सर्वे करेंगे? बायर्स के इंटेंशन का. राइट? मतलब क्या? We will ask, we will interview the potential buyers about their intentions of purchases. राइट? उनका हम बाइंग प्लान समझेंगे within short run, like within 1 year. So we will personally, yeah, I will say हम like potential customers का interviews लेंगे. Maybe that interviews is through questionnaires or by appointing enumerators, etc. You must have learned in 11 how to collect the data, primary data and secondary data, right? Secondary data में we go for like various methods like personal interview method, questionnaire method, etc. etc. So जब हम पर्सनल इंटरव्यूज लेने वाले हैं, राइट, या हम क्वेश्चनर्स डाट करके उनको भेजने वाले हैं एंड उनसे हम रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मींस वी आर रिलाइंग ऑन द बायर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स. सो अंडर दिस मेथड द बर्डन ऑफ द फोरकास्टिंग इज पुट ऑन द फाइनल कंज्यूमर्स, पोटेंशियल कंज्यूमर्स. तो हम राइट वी विल क्वेश्चन देम अबाउट देयर इंटेंशन ऑफ द बाइंग, कि वो कौन से प्रोडक्ट्स परचेस करने वाले इन कमिंग ईयर. नॉट ज्यादा
पूरा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मेथड ऑब्वियसली यूजफुल नहीं है. दिस मेथड इज गुड फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए. सो you will collect the data directly from the buyers, potential customers. There are three ways of collecting that data. One, complete enumerator method means जितने सारे potential buyers है, potential customers है, we will interview each and every one of them. हर एक को हम पूछेंगे. So जो अपना population है, potential customers का जो population है, we will reach to each and every potential customers and we will interview him. We will ask him questions and we will collect the data. उसको बोला था complete enumerator method. The another is sample survey method. Sample survey method मतलब right जो अपना potential customers का population है उसमें से हम scientifically random basis पे unbiased basis पे we will select some of the potential customers and we will question them, we will interview them. And we will collect the data. That data is a representative of the data of the entire population. So sample survey method. And the third is end use method. Generally end use method is used for the inputs, for forecasting the demand for the inputs. Inputs are purchased by the producers and producers have their future plans. कि उनको they are already ready with the plans कि उनकी कितनी product की demand रहेगी, वो demand satisfy करने के लिए कितने inputs लगेंगे. So end use method is really good for the inputs, forecasting the demand of the inputs. So three ways of collecting the data: complete enumerator method, sample survey method, and end use method. That method, right, survey of bias intention is sometimes, right, may mislead you because the buyers, right, the potential customer जिनको आप पूछ रहे हो, they may be biased. They may change their plans, future plans at any point of time. If they get the substitutes, they may change their plans or they may mislead the surveyor. जो survey ले रहा है उसको mislead कर सकते हैं. So that method, right, is again subject to many biases. Then, but that method is really good if you are selling your product, if you are selling your goods and services to the producers. Household के लिए अगर देख रहे हो, if your end user is a household, then this method is subject to many biases. It may not give you perfect picture. But if your buyer, if your user, end user is producers, in that case, this method is the best method. Because end user जो हमारे producers है, they know how much input they want. समझ में आ रहा है? So in that case, this method is good for if you are selling your goods and services to the producers. This method is not that much good for the forecasting the demand of the goods and services which are consumed, which are purchased by the household. So some good points, some bad points, advantages and disadvantage. That is the survey of buyer's intention. हम buyer के पास जाएंगे और उनको पूछेंगे. We will collect the data and we will forecast the demand for our product. That is method 1. ये हमने उस दिन discuss की. Method 2, collective opinion method or sales force opinion method और grassroots approach method. ये method कौन follow करता है? Those firms which have strong sales team, which has connection, right, with the customer. Sales team has contact with the customers. So जिनके पास strong sales team से, like banking में generally देखोगे, they have very strong sales team. उनके जो sales team होती है, they reach to each and every potential customer. अभी आपको कॉल नहीं आते, but अगर आप once you pass out and you start, right, you open your current account and everything, तब आपको कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं. आपको कौन सा लोन चाहिए, आपको इंश्योरेंस चाहिए क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्रॉम द बैंक पर्सनल. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम. वहां पे हम क्या करेंगे? वी विल आस्क आवर सेल्स टीम्स, वी विल आस्क आवर सेल्स पर्सनल. सेल्समैन को पूछेंगे कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हो, जिस ज्यूरिडिक्शन में काम कर रहे हो, राइट, उस ज्यूरिडिक्शन में कितनी पोटेंशियल डिमांड है, कितनी एस्टिमेटेड डिमांड है. वी विल कलेक्ट दैट एस्टिमेटेड डिमांड फ्रॉम ऑल सेल्स टीम. सबसे हम वो कलेक्ट करेंगे एंड वी विल गेट ए कंसोलिडेटेड. हम उसको कंसोलिडेट करेंगे. दैट कंसोलिडेटेड इज आर
एस्टिमेटेड डिमांड, लाइक हम ऐसे बोलेंगे कि हमारी दिस मच क्वांटिटी डिमांडेड और इतना सेल हो सकता है। कैसे करेंगे? हम कस्टमर को डायरेक्टली पूछेंगे, जो फर्स्ट मेथड में कर रहे थे। हम किसके इंटेंशन पे चलेंगे, किसको इंफॉर्मेशन पूछेंगे? वी विल आस्क our sales teams which are like working in a grassroots level, which knows, right, the taste and preference of the consumers, intentions of the consumers. हम उनको पूछेंगे, हमारे सेल्स टीम को पूछेंगे कि फोरकास्ट द डिमांड, आप एस्टिमेट करो कि कितनी डिमांड होगी, एंड वी विल टेक द सम टोटल ऑफ दैट. So we will get one. So step one, ask your sales teams to estimate the demand in their jurisdiction. This is step one. Step two, then take the sum total of that estimated demand. This is step two. You will get a expected demand, estimated demand, demand forecast. However, that demand forecast may be subject to optimistic approach or pessimist approach on salesmen. Reason is very simple. Some salesmen are very optimistic and they may give higher estimates, and some salesmen are pessimistic, they may give you lower figures or lower estimate. So we have to factor in both optimistic view and pessimistic view, and जो उन्होंने जो हमें वैल्यू दी और उन्होंने जो एस्टिमेट दिया, हम उसको री एस्टिमेट करेंगे अपने एंड पे. सो वी विल रिवाइज द एस्टिमेट्स गिवन बाय द सेल्समैन. सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या स्टेप लेंगे? हम हमारे सेल्स टीम को बोलेंगे आप डिमांड एस्टिमेट करो, फिर हम उसकी टोटल लेंगे, फिर वो जो टोटल आई है हम उसको रिवाइज करेंगे. हम इंडिविजुअल सेल्समैन का देखेंगे, हाँ इसने पहले कितना टारगेट अचीव किया, अब भी कितना टारगेट अब भी बोल रहा है. सो अगर वो ज्यादा बोल रहा है तो हम बोलेंगे यार इतना इससे अचीव नहीं होगा, एग्जाम्पल. या बहुत कम बोल रहा है, इसका पहले टारगेट ज्यादा था बट अभी कम बोल रहा है, मतलब एक कंजर्वेटिव है, पेसिमिस्टिक है, हम थोड़ा उसको इंक्रीज करेंगे. So accordingly, we will forecast the demand. Try to understand. That is the second step. Revise the estimates given by the salesman. First step, ask them to estimate, then take the total, then revise that value. And fourth, ये हमें पता चलेगा कि इतना सेल हो सकता है. And we will again come with some advertisement strategy, discounts, pricing strategy. समझ में आ रहा है? Sale, right? We will reach to the customers. So हमारी भी कुछ strategies रहेंगे. सेक्युलर फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे. प्राइस चेंज होती है तो क्या चेंज होगा, इनकम चेंज होती है तो क्या चेंज होगा, पॉपुलेशन चेंज होगी तो क्या चेंज होगा. बिकॉज माय सेल्स टीम इज दैट राइट मे नॉट बी दैट मच knowledgeable, they may not be that much experienced, they may not understand the changes, secular changes in the economy. तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे कि ये अगर सब चेंजेस होते तो ये जो मैंने डिमांड फोरकास्ट किए हैं, रिवाइज करके जो डिमांड आई है उस पे उसका क्या इंपैक्ट रहेगा. एक अगर मैं डिस्काउंट देता तो क्या इंपैक्ट रहेगा, अगर मैं अच्छे से एडवर्टाइज करता तो क्या इंपैक्ट रहेगा. ये जो सेक्युलर चेंजेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म, अगर ये सब होते हैं, इनकम चेंज होती है कस्टमर्स की, पॉपुलेशन चेंज होता है, राइट, बाकी सब चीजें लाइक एग्जांपल लॉकडाउन इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ए फर्म, इट इज सेक्युलर चेंज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इकोनॉमी में वो चेंज हो रहा है, उसको हम रिस्पॉन्सिव, मतलब इट इज नॉट विद इन माई कंट्रोल. अगर ये सब चेंजेस होते हैं तो मेरी डिमांड कितनी रहेगी, तो हम उसको फैक्टर इन करेंगे, उसको भी कंसीडर करेंगे, secular factors को, right, and then we will find a final estimate that will be demand, like वो जो demand forecast रहेगी that will be more appropriate, I will say. In this case we are putting the burden of demand forecasting on our sales team. हमारे sales representative पे डाल रहे हैं, ना कि customers को. Since this method may also involve subjectiveness, reason, right, our salesman may not be that much experienced, this can be one reason. Some salesmen are very optimistic, some salesmen are very pessimistic, right? So they may not understand the secular changes, secular factors and the changes in them in the economy. So again, this method is not that much a great method, but yes, short run में this is really good method. Even this is less costly and less time consuming as compared to the first method, that is survey of bias intention. ऐसे हमने दो methods देखे थे. Now we will go for the third method. Third method क्या है? Third method is expert opinion method, experts opinion method, और जिसको बोला जाता है डेल्फी मेथड. Experts opinion method और डेल्फी मेथड. What do you mean by this method? Try to understand. पहले हमने बायर से पूछा और बायर्स के पास गए और we try to forecast the demand. दूसरे टाइम हम हमारे सेल्स टीम के पास गए और उनको हमने डिमांड फोरकास्ट करने को बोला, बट एट बोथ द एंड देयर इज अ सब्जेक्टिवनेस.
दोनों मेथड में सब्जेक्टिवनेस है, बायसनेस है, एंड देयरफॉर उन दोनों से एक बेटर मेथड है, इवन दैट इज अ चीपर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू फर्स्ट टू मेथड्स, इज we will appoint industry expert, market expert and consultant to forecast the demand. हम एक पैनल अपॉइंट करेंगे एंड दैट पैनल इज ऑफ ए ग्रेट एक्सपीरियंस पैनल, राइट? उनको मार्केट के बारे में सब चीजें पता होगी, वो अलग अलग बैकग्राउंड से रहेंगे, तो एक पैनल अपॉइंट करेंगे और उस पैनल को हम बोलेंगे, मतलब एक्सपर्ट का पैनल लगाएंगे हम, और वी विल प्रोवाइड देम व्हाटएवर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड वी विल आस्क देम टू फोरकास्ट द डिमांड फॉर अस. तो इसमें ना ही हम बायर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ना ही हमारे सेल्स टीम पे डिपेंड कर रहे हैं, हम किस पे डिपेंड करें? एक्सपर्ट. अगर आपके पास उतनी स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम नहीं है तो एक्सपर्ट मेथड इज ऑलवेज गुड, बिकॉज दिस इज अगेन लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग. तो हमने क्या किया, हमने एक्सपर्ट्स को, मार्केट कंसल्टेंट को अपॉइंट किया टू फोरकास्ट द डिमांड एंड we will provide them the information. जो भी उनको information चाहिए हम उनको information देंगे, and with their experience, with their knowledge, because they know the factors, secular factors very closely, उनको पता होता है हर चीज, they are doing like that since they are expert, मतलब वो बहुत पुराने रहेंगे उस फील्ड में. तो हम उनको बोलेंगे आप हमारे लिए क्या करो, डिमांड एक्सपेक्ट करो, हमारे लिए डिमांड प्रेडिक्ट करो, प्रोजेक्ट करो, फोरकास्ट करो. ऑब्वियसली फर्स्ट दो मेथड से ये मेथड इज बेटर बिकॉज इसमें हम एक्सपर्ट्स अपॉइंट कर रहे हैं. बट ये ऐसे होता है कि रिपब्लिक टीवी जैसे सब एक्सपर्ट को बिठाए, वो एक्सपर्ट होते नहीं, उनको एक्सपर्ट बोलते हैं. रिपब्लिक टीवी जैसे सब एक्सपर्ट को बिठाए और एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे हैं, नो, ऐसे ऐसे आप नहीं करते. यू अवॉइड सच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिंग. ये आप ऐसे पैनल नहीं लगाते कि सबको एक दूसरे के सामने बिठाया, हाँ तू बोल कितनी डिमांड है, तू बोल कितनी डिमांड है, एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे जो अर्णव गोस्वामी करते हैं, डेफिनेटली नहीं. इसमें एक्चुअली हम किसको बोलेंगे नहीं, हमारे एक्सपर्ट कौन है. लाइक देयर आर 10 एक्सपर्ट, 10 एक्सपर्ट को नाम भी नहीं पता होंगे, बाकी मतलब हर एक को दूसरे के नाम भी नहीं पता होंगे, मतलब हम उनकी इंडिविजुअल लाइक सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, कौन हमारे एक्सपर्ट है. मैंने 10 एक्सपर्ट लगाए बट एक को दूसरे का नाम नहीं पता होगा, दूसरे का पहले का नहीं पता होगा. क्यों? रीजन उससे टू रिमूव द अनबायसनेस, टू रिमूव द बायसनेस एंड टू ब्रिंग इन अनबायसनेस. मतलब क्या, सपोज आई हैव अपॉइंटेड 10 experts और I will provide them the information, I will provide them the questionnaire, एक well structured questionnaire रहेगी मेरी, मैं उनको प्रोवाइड करूंगा. 10 के 10 लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, ध्यान देना मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ. 10 के 10 लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा एंड I will ask them to give their feedback with reasons. मैं बोलूंगा एक क्वेश्चनियर है, हमें डिमांड फोरकास्ट करनी है, लाइक हमारी फर्म है और हमने 10 एक्सपर्ट को बिठाया. ऐसा समझो कि 10 को 10 रूम में बिठाया, दे वोंट डिस्कस, एक दूसरे के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे. दे हैव टू यूज देयर ओन नॉलेज, दे हैव टू यूज देयर ओन इंडिकेटर्स, उनको उनका एक्सपीरियंस यूज करना है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके डिमांड नहीं फोरकास्ट करनी है. जैसे अर्णव गोस्वामी एक दूसरे के साथ डिस्कस करके खुद एंड में जिसको वो लगता है वो बोलता है, वैसे हमें नहीं करना है. हमें वो अलग कर रहा है, हमें एक्चुअली हमारी डिमांड फोरकास्ट करनी है. तो हम क्या करेंगे, सपोज 10 लोगों का पैनल लगाया है, राइट? हम किसी को किसी का नाम नहीं बोलेंगे, सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, हर एक के लिए सेम क्वेश्चंस हम ड्राफ्ट करके देंगे एंड वी विल आस्क देम टू गिव देयर फीडबैक, उसको रिस्पांस मांगेंगे अलोंग विद द आंसर्स. हम उनको बोलेंगे कि आप इसका आंसर दे दो, फोरकास्ट द डिमांड एंड आपका लॉजिक दे दो, आपका रीजन दे दो इन चीजों के लिए, क्यों आप इतना डिमांड बोल रहे हो. तो उससे हमें 10, सपोज 10 लोग थे, 10 आंसर्स मिल गए विद द लॉजिक. फिर हम क्या करेंगे, ये जो लॉजिक्स है, अब ये जो मुझे 10 फीडबैक मिले, ऑब्वियसली 10 के 10 अलग अलग फीडबैक हो सकते हैं. नाउ आई विल सर्कुलेट, सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए को बाकी 9 लोगों के आंसर्स दे दूंगा विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम. मैं बोलूंगा कि हमारे जो बाकी एक्सपर्ट है उनको ये लगता है, आप देखो, आई वोंट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी. ऐसे मैं सबके साथ करूंगा. मिस्टर बी को बाकी वो छोड़ के बाकी 9 लोगों के रिस्पॉन्सेस दे दूंगा, फिर मिस्टर सी को वो छोड़ के बाकी 9 लोगों की रिस्पॉन्सेस दूंगा. ऐसे सब लोगों को मैं उनके रिस्पॉन्सेस विथ उनका क्या थॉट प्रोसेस है वो मैं दे दूंगा. नाउ पहले उन्होंने उनका थॉट प्रोसेस यूज किया, नाउ दे हैव द थॉट प्रोसेस ऑफ अदर एक्सपर्ट्स. नाउ वो सोचेंगे यार ये ऐसे सोच रहा है, नाउ उनका और थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा. मैंने ये पॉइंट सोचा था, इसने ये अलग पॉइंट सोचा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन विल थिंक
उनके क्या पॉइंट्स थे और इनके क्या पॉइंट्स है बाकी लोगों के, उससे क्या हो जाएगा कि जो पहले अलग अलग ओपिनियंस बन रहे थे हर एक के, मे बी दे विल गेट कन्वर्ज्ड। तो फिर एक राउंड हो जाएगा ऐसे, और फिर हम उनको बोलेंगे अब फिर से आपका रिवाइज रिस्पॉन्स हमें दे दो, वही क्वेश्चन यार आप हमें रिवाइज दे दो। नाउ एवरीवन हैज द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड अकॉर्डिंगली दे विल रीअलाइन देयर एस्टिमेट्स। बिकॉज अगर आपके पास बाकी लोगों के भी इनपुट्स मिलते हैं एंड आपको नाम भी नहीं पता चल रही, इसलिए आप में कोई बायसनेस भी नहीं है, समझ में आ रहा है। मे बी यू मे बी रॉन्ग एट सम पॉइंट, आपको समझ में अगर ये बंदा ऐसे सोच रहा है, एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, इनका इनपुट ऐसे है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, यू विल रीअलाइन योर एस्टिमेट एंड अगेन आप एक नया रिवाइज्ड एस्टिमेट दोगे, रिवाइज रिस्पॉन्स दोगे अलॉन्ग विद द रीजन। फिर से 10 हमें रिस्पॉन्स मिले, इस रीजन फिर हम देखेंगे एक्चुअली इनमें कुछ सिमिलरिटी है या नहीं है, नाउ यू विल गेट मोर सिमिलरिटी, और फिर ऐसे राउंड करते रहेंगे। फिर ये जो सेकंड राउंड में जो 10 नए रिस्पॉन्स मिले, बिकॉज मैंने 10 का पैनल माना है, इट्स योर चॉइस आपको कितना एज्यूम करना है, फिर मैं ये 10 नए जो नए रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आ गए ना, मैं फिर से सबको दे दूंगा वो विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम। तो फिर उनको पता चलेगा कि यार हाँ अभी थोड़ा क्लोज एस्टिमेट है, हमारे व्यूज लाइक नजदीक आ रहे हैं, लाइक क्लोज है एक दूसरे के साथ, एंड ऐसे हम राउंड करते रहेंगे कब तक, until we get a common opinion, until we get a converged opinion। हर एक के ओपिनियन का जो पहले जो डेविएशन था वो डेविएशन धीरे धीरे कम होगा, बिकॉज नाउ दे आर थिंकिंग राइट, हर एक अपने 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 जो थॉट प्रोसेस हो दूसरे के साथ शेयर कर रहा है विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी। तो ऐसे राउंड एंड राउंड करने के बाद यू विल गेट ए ओपिनियन विच विल बी, सबका ओपिनियन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, and that will give right a perfect estimate. I'm may not say perfect but very good estimate। so इसमें biasness चला गया, and almost 10 लोगों ने by going through various rounds, by understanding each other's thought process, they have come with a converged figure, converged opinion, and that is my estimate। ये जो process है, this process is called as Delphi technique। इसको क्या बोला जाता है, Delphi technique, and given by मॉड्यूल में कुछ तो नाम है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट इकोनॉमिस्ट, मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ बिकॉज मैंने हाईलाइट भी करके रखा है वो। अच्छा यस, एक्सपर्ट ओपिनियन, राइट, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है, आई विल शेयर माई स्क्रीन, ठीक है, यस, यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्फी, ठीक है, ये जो मैंने मेथड समझाई है ये मॉड्यूल में लिखी है उन्होंने, ठीक है, हाँ देखो, द डेल्फी टेक्निक डेवलप्ड बाय ओलफ हेल्मर, ठीक है, एट रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। रैंड कॉर्पोरेशन जनरली एस्टिमेट्स वगैरह करते हैं फॉर लाइक कंट्रीज के लिए एस्टिमेट करते हैं। गो एंड सर्च ऑन गूगल, यू विल फाइंड मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट देम। लाइक सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने बहुत सारे एस्टिमेट्स किए थे, राइट, ये बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, लाइक रशिया का स्प्लिट हुआ था देखो, उसके टाइम भी उन्होंने बहुत सारे एस्टिमेट्स किए थे। अभी ब्रेक्सिट हुआ है, उसके टाइम भी इन लोगों ने बहुत सारा काम किया, रिसर्च रिपोर्ट्स, लाइक इन लोगों ने ये डेल्फी टेक्निक ढूंढी है, डेल्फी टेक्निक बाय, ये नाम याद होना चाहिए, ओलफ हेल्मर, एंड राइट बिलोंग्स टू द रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। सो ये जो भी मैंने अभी समझाया जो प्रोसेस है ये यहाँ पे मॉड्यूल में लिखी है। यू हैव टू डू दिस प्रोसेस अंटिल कन्वर्जेंस ऑफ द ओपिनियन इज अराइव्ड एट। जब तक सब पहले जो फर्स्ट राउंड रहेगा ना, हर एक का बहुत अलग अलग ओपिनियन रहेगा, बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे, बिकॉज यू विल बी शेयरिंग अदर्स ओपिनियन विद रिमेनिंग पर्सन, मेरा ओपिनियन सबके साथ शेयर हो रहा है, बाकी सबका ओपिनियन मेरे साथ शेयर हो रहा है, देन आई एम अगेन अलाउड द टाइम टू राइट फॉर्म द स्ट्रेटेजी टू ओवर लाइक अगेन थिंक फ्रॉम द स्क्रैच वगैरह। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो जैसे से राउंड्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो जो डेविएशन हुआ करता था हमारे एस्टिमेट्स में वो कम होता जाएगा। So this process will be done, ये जो rounds हम कर रहे हैं, right, will be done until convergence of the opinion is arrived at। This is based for circumstances where intractable changes are occurring। What do you mean by intractable? मतलब the changes which are very
डिफिकल्ट टू डील इन। ऐसे चेंजेस जो हम टैकल करने में बहुत मुश्किल है, लाइक लॉकडाउन, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे केसेस में हम जनरली एक्सपर्ट्स का ओपिनियन मांगते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइक अभी वैक्सीन आने वाली है, तो कोई बोलता है 15 अगस्त को आ जाएगी, कोई बोलता है उसके पहले आ जाएगी, कोई बोलता है 10 साल लगेंगे। तो ऐसे टाइम पे experts come with their opinions, and according to them it will take at least 12 months to minimum 12 months to actually, right, वो वैक्सीन मार्केट में आने के लिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम कोई भी अगर वैक्सीन बनानी तो मिनिमम 12 इयर्स लगते हैं अगर आप धीरे धीरे करते हो। बट नाउ इट इज वेरी अर्जेंट, अगर कितने भी आप प्रोसेस स्पीड में करो तो मिनिमम 12 मंथ्स तो लगेंगे लगेंगे। दैट इज व्हाट द इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेज। सो जो मार्केट में न्यूज आ रही कि 15 अगस्त को आ जाएगी, बाबा रामदेव ने निकाला वगैरह, राइट, अकॉर्डिंग टू देम इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज दे आर इन दैट फील्ड सिंस इयर्स। सो ऐसे जो चेंजेस होते हैं विच आर वेरी डिफिकल्ट टू टैकल विथ, टू डील विथ, राइट, इंट्रैक्टेबल चेंजेस के लिए हम कौन सी मेथड फॉलो करते हैं? एक्सपर्ट्स ओपिनियन। जब हमारे ऐसे चेंजेस जो हमारे कंट्रोल के बाहर है तो हम एक्सपर्ट्स के हेल्प ले लेंगे। ठीक है, आगे लिखा है दिस मेथड इज ऑल्सो हेल्पफुल टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, राइट। अगेन दिस मेथड इज गुड मेथड बिकॉज इसमें स्पीड ज्यादा होता है, एंड इवन दिस इज चीपर बिकॉज पूरी सेल्स टीम लगाने से to reach to each and every customer in first method that is very costly. So उससे ये मेथड क्या है? बेटर मेथड है। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड। सो हमने तीन लोगों के ओपिनियन देखे। फर्स्ट मेथड में हमने कंज्यूमर्स का देखा, पोटेंशियल बायर्स का देखा, राइट। दूसरे में हमने हमारे सेल्स टीम का ओपिनियन देखा, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। एंड तीसरे केस पे हमने, राइट, एक्सपर्ट का ओपिनियन की, राइट, एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया। सो देयर आर three methods basically which are on the basis of opinions. एक तो कस्टमर्स का, दूसरा हमारे सेल्स टीम्स का, और उससे भी बेटर है एक्सपर्ट्स का। एक्सपर्ट मेथड, राइट, एक्सपर्ट मेथड इज followed to trace the intractable changes or it is used to address the complex question. It is better method than first method and second method because it, राइट, यहाँ पे स्पीड भी ज्यादा है और दिस इज लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू द फर्स्ट टू मेथड्स। आई विल गो थ्रू द स्टैटिस्टिकल मेथड्स एट द एंड, सबसे एंड में। उसके पहले कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मेथड मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। नाउ एवरीबडी इज क्यूरियस अबाउट द वैक्सीन्स। जो कोरोना के लिए जो वैक्सीन आने वाली उसके बारे में एवरीवन इज क्यूरियस, एंड एवरीबडी एटलीस्ट इतना तो पता है वो जो वैक्सीन आती है तो अलग अलग फेजेस से उसको पास होना होता है। पहले वो एनिमल्स पे ट्राई करेंगे, वहां पे वो सक्सेसफुल होती है तो फिर वो ह्यूमंस पे ट्राई करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ह्यूमंस पे ट्राई होती तो फिर वो मार्केट में आएगी, सपोज फिर वो प्रोडक्शन देखा जाएगा, वो सब चीजें तो एक एक फेज से जाती है। सो आर एक्चुअली जो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब जब वो वैक्सीन ह्यूमंस पे ट्रायल किया जाएगा, यस इट इज इन ह्यूमन ट्रायल फेज, राइट। इंडिया में दो वैक्सीन है, दो कंपनीज है जिनके वैक्सीन आर इन ह्यूमन ट्रायल फेज। तो उसपे एक दो मंथ वो स्टडी करते हैं कि एक बार डोज देने के बाद उसको रिएक्शन देखते हैं। एक दिन की रिएक्शन, 2 दिन की नहीं, दे स्टडी लाइक फॉर 1 मंथ 45 डेज, ऐसे वो स्टडी करते हैं। बिकॉज उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होने चाहिए, उससे वो बीमारी कम होनी चाहिए, इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, या उसकी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। सो नाउ वो क्या कर रहे हैं, जो कंपनीज है, आपने देखा होगा कुछ तो 12 कंपनीज 12 जगह पे वो ट्रायल चल रही है। दे हैव अपॉइंटेड द हॉस्पिटल। महाराष्ट्र में एक, नागपुर में एक हॉस्पिटल है, राइट, जहां पे वो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। दे आर डूइंग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन ट्रायल्स। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज, ये सबके लिए नहीं, आ जाओ और ट्राई करते हैं सबको, ऐसे नहीं है। They select some of the persons and उन पे वो ट्रायल कर रहे हैं। So what I am saying, this is called as controlled experiment. This is called as controlled experiment. सब पे ट्रायल नहीं कर रहे, सबको ट्रायल करने के पहले कोई लोगों पे ट्रायल करना, कोई चीजों पे ट्रायल करना, समझ में आ रहा है? तो उसको बोला जाएगा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ऑन सिमिलर बेसिस, ऑन सिमिलर बेसिस हम क्या करेंगे, हम जो चेंजेस लाने वाले हैं, लाइक हम प्राइस में चेंज लाने वाले हैं,
हमें देखना है कि माय डिमांड, फ्यूचर डिमांड डिपेंड्स ऑन मेनी डिटरमिनेंट्स। हमने सीखा है डिमांड डिपेंड्स ऑन मेनी डिटरमिनेंट्स, लाइक व्हाट, कौन से चीजों पे डिमांड डिपेंड करती है, राइट। एग्जांपल, डिमांड डिपेंड्स ऑन मेनी वेरिएबल्स और मेनी determinants. Demand is a dependent and determinants of demand are independent. Independent को explanatory variables भी बोला जाता है, explanatory variables, ठीक है। So मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, my demand depends on the price of the commodity, it advertisement, income, population, taste, preferences, age structure, right, sex ratio, बहुत सारी चीजों पे मेरी डिमांड डिपेंड करती है। And I want to forecast my demand. So what a firm will do the changes, variations in some of the variables on which demand depends, जो हमारे कंट्रोल में। I cannot change the income of the people, but मैं एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी कर सकता हूँ, मैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ, या चलो इनकम भी, हम लोगों को इनकम देंगे, बोलेंगे ये पैसा ले लो एंड गो एंड स्पेंड एंड गिव अस योर डिटेल्स, आप कैसे स्पेंड करते हो। Accordingly, we will forecast the demand. Controlled experiment method is called as, right, market experiment method as well. हम मार्केट में एक्सपेरिमेंट करेंगे, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, खाली कोई लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेगा या एरिया के लिए रहेगा। एग्जांपल, पूरे पुणे में कैंप में हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैंप में जितने सारे दुकान है वहां पे हम एक अलग प्राइस लगा देंगे, एक अलग प्राइस रखेंगे और देखेंगे यहाँ के कस्टमर्स क्या रिएक्ट कर रहे हैं, और फिर हम उस रिएक्शन को नोट डाउन करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट प्राइस एंड द क्वांटिटी रिलेशनशिप, एंड वो एक्सपेरिमेंट से हम कुछ, हमें जो रिलेशन मिलेगा उसको हम स्टडी करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फोरकास्ट द डिमांड। प्राइस कम होती तो कितने से डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कितने से डिक्रीज हो रही है, कस्टमर्स कैसे चेंज कर रहे हैं, राइट। अगर मैं अलग अलग सेल्स पे अलग अलग प्राइस रखता हूँ, लाइक आप कम परचेस करोगे तो ज्यादा प्राइस, बट आप ज्यादा परचेस करो, बल्क में परचेस करो तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, एक के साथ दो के साथ एक फ्री वगैरह ऐसे कुछ ऑफर रखता हूँ, तो कस्टमर्स कैसे बिहेव करेंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। बट ये हम पूरे मार्केट में नहीं कर रहे, पूरे पुणे में नहीं कर रहे, पूरे महाराष्ट्र में नहीं कर रहे, पूरे इंडिया में नहीं कर रहे, हम एक पर्टिकुलर स्टेट, अगर आप पूरी इंडिया की बात कर रहे हो, अगर आप पूरा महाराष्ट्र की बात करो तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप पूरे पुणे की बात करो तो कोई एक एरिया में, लाइक कैंप, वहां पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, उसके बाहर वो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, खाली वहां पे होगा। एंड वहां पे हम स्टडी करेंगे कि हाउ दे रिएक्ट्स, जो हम चेंज कर सकते हैं, जो हम चेंज कर सकते हैं उन वेरिएबल्स को हम चेंज करेंगे, लाइक प्राइस चेंज कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं, पैकिंग चेंज कर सकते हैं, होम डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। और एक स्पेसिफिक एरिया में हम वो करेंगे या अलग अलग एरिया चुनेंगे, लाइक कैंप में हम प्राइस कम करके देखेंगे, शिवाजी नगर में हम होम डिलीवरी करके देखेंगे, करवेर नगर में हम ऐसे अलग अलग ज्यादा परचेस करोगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे कुछ करके देखेंगे। समझ में आ रहा है? सपोज हम सातारा रोड पे हम एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करके देखेंगे, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स को अलग अलग एरियाज में कर सकते हो, या तो एक ही एरिया में आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हो, पहले ये स्ट्रेटेजी, फिर ये स्ट्रेटेजी, फिर स्ट्रेटेजी 3, स्ट्रेटेजी 4, या अलग अलग एरियाज में साइमल्टेनियसली अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगाओगे। डीलर्स को डिस्काउंट देके देखोगे, डीलर्स को ज्यादा कमीशन देके देखोगे। समझ में आ रहा है? एक एरिया में डीलर्स को ज्यादा कमीशन देके देखा, देखो वो क्या रिएक्ट करते हैं, कितना अपना सेल इंक्रीज होता है उसकी वजह से। डीलर्स को ज्यादा कमीशन मिलेगी तो दे विल ट्राई टू सेल मोर ऑब्वियसली। तो ऐसे हर एरिया में अलग अलग स्ट्रेटेजी, या एक ही एरिया में अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रेटेजी, एंड वी विल नोट डाउन द स्ट्रेटेजी एंड इट्स इंपैक्ट, एंड अकॉर्डिंगली यूजिंग दैट इनपुट्स जो हमें मिले हैं, जो हमने डिराइव किए मार्केट से, ये अलग एक्सपेरिमेंट्स करके उससे हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड या मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। हम लिमिटेड बेसिस पे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्चुअल, लाइक इन योर आर्टिकलशिप यू विल एक्चुअली लर्न ऑल दोस थिंग जो आप भी सीख रहे हो, आप ये सब चीजें, आप अकाउंट सीख रहे हो, आप लॉ सीख रहे हो, आप टैक्स सीखोगे, ऑडिट सीखोगे, ये सब आप एक्चुअली काम करोगे, एंड उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्चुअल एक्सपीरियंस करोगे। सो बट कंट्रोल मैनर में रहेगी, पूरे पान एरिया नहीं होगी या पान पुनी नहीं होगी, खाली हम एक एरिया में वो सिलेक्ट करेंगे और वहां का रिस्पॉन्स हम स्टडी करेंगे और बाकी जगह पे अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक
हर अलग अलग एरिया में अलग अलग स्ट्रेटेजी साइमल्टेनियसली चलाओ एंड देन अंडरस्टैंड विच स्ट्रेटेजी इज वर्किंग बेटर. दूसरा, या एक ही एरिया में अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करो एंड देन डिसाइड विच स्ट्रेटेजी विल वर्क फॉर यू एंड अकॉर्डिंगली यू कैन predict your demand or forecast the demand. However, this is also risky. Why? Because आपने एक कैंप के एरिया के डीलर्स को ज्यादा कमीशन दे दी तो बाकी एरिया के डीलर्स विल गेट डिसअपॉइंटेड, नाराज हो जाएंगे आपसे कि आप इस एरिया में उनको ज्यादा कमीशन देते हो और हमें कम देते हो. इवन अगर आप कैंप के कस्टमर्स को ज्यादा कम प्राइस लगाते हो और बाकी कस्टमर्स को आप ज्यादा प्राइस लगा रहे हो बिकॉज आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बाकी कस्टमर्स में दे से कि यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग, सो दे मे नॉट परचेस योर प्रोडक्ट. आर यू गेटिंग में? आपके सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ सकता है, आपके कस्टमर्स आपसे नाराज हो सकते हैं. सो दिस इज रिस्की मेथड बिकॉज एक्सपेरिमेंट करना इज ऑलवेज रिस्की. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हाँ, एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल होता है तो बहुत अच्छा है, बट इट इज रिस्की, इट कम्स एट ए रिस्क. सक्सेस विल कम एट ए रिस्क. दूसरी बात, इसलिए ऐसे प्रॉपर एरिया में ऐसे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने से बेटर होता है लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करना. व्हाट डू मैं लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट? अब यहाँ पे लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं, या उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर क्लिनिक अप्रोच. इसका एक छोटा पार्ट है. हम पूरे कैंप में जो कर रहे हैं ना, उसको हम अलग ढंग से भी कर सकते हैं. उसको बोला जाता है राइट कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और कंज्यूमर क्लिनिक. मतलब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि जब ये अभी जो वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का, तो आपको क्या लगता है कि कौन लोग जाते होंगे? ये तो गवर्नमेंट इज ओपन या वो हॉस्पिटल ओपन है, जिनको ट्रायल करना है दे कैन कम एंड हम उन पे ट्रायल करेंगे. दिस इज वन ऑप्शन. ऐसे कोई लोग होंगे भी, या बहुत बीमार है, एग्जाम्पल बहुत बीमार है एंड डॉक्टर बोलते हैं देखिए दवाई मार्केट में चल रही है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर ये चलती है तो तू बच जाएगा, अदरवाइज नहीं, वैसे भी तुझे मरना है, एक्सपेरिमेंट करके मर. ऐसे वो बोलेगा नहीं, बट पेशेंट क्या सोचेगा, यार अगर ये चल गई तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो वैसे भी मुझे जाना ही है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं. ऐसे लोग हो सकते हैं. या दूसरे, हम उनको पैसे देंगे, आओ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम आपको उसके लिए पैसे देंगे. ऐसे भी होता है. we'll give money and we will experiment on them. ऐसे दो टाइप्स के कस्टमर्स हो सकते हैं, पेशेंट हो सकते हैं, ऐसे पकड़ के चलो. ऑन सिमिलर बेसिस जब मैं कंज्यूमर क्लिनिक की बात कर रहा हूं, उसका नाम दिया गया है कंज्यूमर क्लिनिक्स. वो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट हम लैब्स में करते हैं, हम मेडिकल साइंस में करते हैं, इसलिए वहां से वो वर्ड बोरो किया गया है कंज्यूमर क्लिनिक्स या कंट्रोल लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. मतलब हम क्या करेंगे, हम एक दुकान में हम क्या करेंगे, हम कस्टमर्स को बोलेंगे यू कैन कम हियर, टेक द मनी एंड गो एंड शॉप. शॉपिंग करो, गो फॉर द शॉपिंग, राइट. मार्केटिंग करो, आपको जो आपको परचेस करना है करो. वी विल गिव सम लाइक एग्जांपल 1000 रुपीज, गो एंड बाय. तो हम हमारा प्रोडक्ट कितने लोग परचेस कर रहे हैं उसमें हमने अलग अलग रखे हैं. अपने प्रोडक्ट अलग अलग, लाइक डिजाइनिंग अलग है, लाइक क्वांटिटी अलग है, प्राइजेस अलग अलग है. तो देखेंगे कि हाउ दे राइट वो उनका एक्सपेंडिचर या उनकी इनकम कैसे एक्सपेंड करते हैं या स्पेंड करते हैं. एंड वी विल ऑब्जर्व दैट एंड अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड आउट द like some trend, some like inputs which will help you to predict your demand. Are you getting my point? तो उसमें जिसमें हम कस्टमर्स को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं गो एंड स्पेंड. वो बोलेंगे आपके एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्यों खर्चा करें. कोई हो भी सकते हैं जो खर्चा करेंगे, और मैक्सिमम लोग तो बोलेंगे कि हम क्यों खर्चा करें, आपको एक्सपेरिमेंट करना है. तो हम उनको बोलेंगे कम, वी विल गिव द मनी, स्पेंड इट, आप खर्चा करो अकॉर्डिंगली, बट दैट बेनिफिट्स अस. हमको बेनिफिट कर रहा है. कोई बोलेगा आप क्यों पैसे दोगे, बट अगर ये इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कॉस्ट लगने वाली है, बेनिफिट देखो. इफ बेनिफिट इज मोर देन इट इज गुड टू इंकर द कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, such experiments are called as controlled market experiment or controlled laboratory experiment or consumer clinic. अच्छा, however this is expensive as well as time consuming, right? एंड हम क्या करते हैं, हम मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं. मैंने बोला कैंप, शिवाजी नगर, कर्वे रोड, साता रोड एग्जाम्पल. तो ऑब्वियसली हम मानते हैं कि ये जो हम मार्केट को सेग्रीगेट कर रहे हैं राइट ऑन सम बेसिस, लाइक इनकम सेम है, ए स्ट्रक्चर सेम है, ऐसे हम मार्केट को कोई बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं. होमोजेनिटी मान रहे हैं कि इस मार्केट में होमोजेनिटी है, इस मार्केट में होमोजेनिटी है, लाइक दैट.
लाइक अगर डेक्कन एरिया में आओगे तो यू विल फाइंड मोर कॉलेज गोइंग क्राउड. समझ में आ रहा है? अगर आप कैंप एरिया में आओगे तो आपको यहाँ पे कॉस्मोपोलिटन क्राउड मिलेगा, सब रिलीजन के लोग मिलेंगे, सब रिलीजन के. कैंप एरिया में आओगे यहाँ पे आपको फॉरेनर्स भी मिलेंगे, लोकलाइट्स भी मिलेंगे, बाहर के आए हुए लोग भी मिलेंगे. कॉस्मोपोलिटन क्राउड बोला जाता है कैंप एरिया को, केपी वगैरह, कल्याण नगर वगैरह. तो हर जगह पे हम मानते हैं कि एक जिस बेसिस पे मैंने उसको सेग्रीगेट किया है दैट इज होमोजेनियस, दैट इज अगेन एजम्पशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा क्या प्रॉब्लम आता है कि हम क्या करते हैं कि सपोज कैंप में हमने प्राइस कम करके देखी, बाकी फैक्टर्स सेम रखे, या एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी चेंज करके देखी, बाकी फैक्टर्स सेम रखे, राइट. हमने पैकेजिंग चेंज करके देखा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, बाकी सब फैक्टर सेम रखे. तो कौन सा फैक्टर वेरी करना है और कौन सा फैक्टर्स कंट्रोल करना है, ये डिसाइड करना भी चैलेंजिंग होता है. सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ, राइट, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मेथड. एक मैंने बोला होमोजेनिटी, जिस बेसिस पे हम मार्केट को सेग्रीगेट कर रहे हैं वो होमोजेनिटी असर्टेन करना या होमोजेनिटी रियल लाइफ में होना इज वेरी डिफिकल्ट. थियोरेटिकली तो हम बोल सकते हैं कि होमोजेनियस मार्केट को अलग करेंगे, वहां पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. हाउएवर वो होमोजेनियस मार्केट को अलग करना इज वेरी डिफिकल्ट. सेकंड पॉइंट कि हम मानते हैं कि हम एक वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे एंड हम स्टडी करेंगे हाउ इट रिएक्ट्स, राइट, हाउ माय क्वांटिटी डिमांड रिएक्ट्स टू चेंज इन दैट वेरिएबल. बाकी को हम कांस्टेंट रखेंगे. कौन सा वेरी करना है, कौन सा कांस्टेंट रखना है, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. फिर मैंने बोला कि इट इज अ कॉस्टली मेथड, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, राइट. एंड अगेन, right, it may have negative impacts on your dealers, on your consumers in other areas जहां पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे. आप लोगों को ये नहीं बोलोगे कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप उस एरिया में कम प्राइस ऑफर करोगे, तो बाकी एरियाज वाले बोलेंगे यार यहाँ पे तो हमें तो ज्यादा प्राइस लगाई जा रही है. आप एक एरिया के डीलर्स को ज्यादा कमीशन देके देखेंगे तो बाकी एरिया के डीलर बोलेंगे यार हमें तो कमीशन नहीं मिल रही उतनी. सो दैट मे क्रिएट ए नेगेटिव लाइक मेंटेलिटी, राइट, इन द मार्केट. सो आपके लिए निगेटिव ओपिनियन हो सकता है बाकी जगह पे. सो दिस मेथड, राइट, इज यू कैन से एक्चुअल में हम करते हैं, हम क्या बोलते हैं, मतलब एक्चुअल हम मार्केट में जाके वो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे. सो दिस इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स और कंज्यूमर क्लिनिक्स. ठीक है. The last important method, actually before statistical methods, एक मेथड है बैरोमेट्रिक मेथड. आपने सुना होगा बैरोमीटर्स होते हैं. देखो बैरोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर, राइट, लाइक मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट पता है आपको, राइट. मेट्रोपॉलिटन वो लोग क्या करते हैं, वो डिपार्टमेंट क्या करता है, या वो मेट्रोपोलिस क्या करते हैं, वो आपके वेदर, राइट, मेजर करते हैं, कितनी बारिश होगी या कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी वगैरह वगैरह. सो व्हाट आई वांट टू से, जो मेट्रोलॉजिस्ट जो काम करते हैं, राइट, दे यूज द बैरोमीटर्स टू प्रेडिक्ट द रेनफॉल, टू प्रेडिक्ट द ह्यूमिडिटी, राइट, हीट वगैरह, वो सब जो चीजें रहेगी इन्वायरमेंट के रिलेटेड, वो मेट्रोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं या वो प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैरोमीटर्स. तो जो मेट्रोलॉजिस्ट जो काम कर रहे हैं या वो जो डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, वो जो काम कर रहा है, ऑन सिमिलर बेसिस हम एक ऐसी मेथड फॉलो करेंगे, हमारे बैरोमीटर्स रहेंगे जो मार्केट डिमांड प्रेडिक्ट करेंगे, रेनफॉल प्रेडिक्ट करने के लिए, ह्यूमिडिटी प्रेडिक्ट करने के लिए. जैसे मेट्रोलॉजिस्ट बैरोमीटर का यूज करते हैं, वैसे इकोनॉमिस्ट विल फॉलो इकोनॉमीज इंडिकेटर, इकोनॉमी के जो भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, वो इंडिकेटर्स विल ट्रीट एज ए बैरोमीटर्स. हम उनको बैरोमीटर की तरह ट्रीट करेंगे एंड हम डिमांड प्रेडिक्ट करेंगे. तो मैंने, राइट, नाम ही है बैरोमेट्रिक मेथड, बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. जस्ट एज, राइट, योर मेट्रोलॉजिस्ट यूज बैरोमीटर्स टू प्रेडिक्ट द रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, the firm will use economic indicators as barometers to predict or to forecast the demand. Which are those indicators? ऐसे कौन से indicators हम मानेंगे? Actually there are many indicators, like one can take GDP, one can take employment rate, national income, GDP that is, right. It can be like a big example, economy grow हो रही है
क्या हो रही, लाइक डाउन पे चल रही है, आपका सेंसेक्स कैसे या निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज निफ्टी इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी. लाइक लिटरेसी रेट क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है, देयर आर मेनी इंडिकेटर्स. हम उन इंडिकेटर्स की एक इंडेक्स बनाएंगे. इंडेक्स मतलब एक कंपोजिट नंबर और रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ. सो देयर आर मेनी इंडिकेटर्स, मैंने बोला देयर आर मेनी इंडिकेटर्स which are used as a barometer to measure your demand. So economy के जो जो indicators हैं, हम उनसे एक index formulate करेंगे. It can be like industrial production index, IPB, IPI को, right? Industrial production index, employment index हो सकती है, right? ऐसे GDP, ऐसे बहुत सारे हम indicators use करके हम क्या करेंगे, एक index बनाएंगे, and that index is used as a barometer to forecast the demand, same as meteorologists use barometers to predict the rainfall. So what I want to tell you, right now, try to understand. बाकी methods में हमने historical data use किया, बाकी methods में हमने historical data use किया and demand forecast की. इसमें हम historical data नहीं use कर रहे, हम economy में जो changes हो रहे हैं उनको use कर रहे हैं and we are trying to forecast the demand. हम बैरोमीटर्स यूज कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एज ए बैरोमीटर्स यूज कर रहे हैं. हम उन इंडिकेटर्स की इंडेक्स बनाएंगे, अकॉर्डिंगली वी विल प्रेडिक्ट द डिमांड. लाइक एग्जांपल, सेंसेक्स ऊपर गया, निफ्टी ऊपर गया, तो हम बोलते हैं मार्केट अच्छा चल रहा है, मतलब मे बी कंपनीज आर परफॉर्मिंग गुड. अगर सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जाता है तो हम बोलते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, मे बी कंपनीज आर परफॉर्मिंग बैड. लाइक बैंक निफ्टी होता है, राइट? एग्जांपल, वो नीचे जा रहा है मतलब बैंकिंग सेक्टर बैड परफॉर्म कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है. Like that is an index. Bank Nifty is the index of performance of the banks at a stock exchange, like NSE, National Stock Exchange. So ऐसे हम indicators को ढूंढेंगे, उनकी एक index करेंगे, and that index will help us to, right, forecast the demand. Which are those indicators? Basically, there are 3 indicators. ये बहुत सारे indicators है. हम इन indicators को 3 में डालते हैं, 3 कैटेगरी में डालते हैं. 1, लीडिंग इंडिकेटर्स. लीडिंग, ये लास्ट जो चैप्टर है बिजनेस साइकिल, उसमें और अच्छे से आ जाएगा. मैं जस्ट एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. लीडिंग इंडिकेटर्स, सम इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स एंड सम इंडिकेटर्स आर कॉन्करेंट इंडिकेटर्स. ऐसे 3 इंडिकेटर्स होते हैं. मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप सुबह देखते हो बाहर जाके तो देखता है कि यार बारिश होगी, ऐसे आपको लगता है. क्यों लगता है बारिश होगी? बिकॉज मे बी बादल छाए हुए होते हैं, राइट? थोड़ा फर अंधेरा रहता है, राइट? हवा चलने लगती है, तो आपको लगता है कि बारिश होगी. बारिश हुई है कि नहीं? बट ऑल दिस इंडिकेटर्स आर लीडिंग. बारिश होने के पहले ही आपको बोल रहे हैं कि बारिश हो सकती है. दे आर लीडिंग द चेंज. जो चेंज होने वाला है, जो बारिश होने वाली है, जो इवेंट होने वाला है, इकोनॉमिक इवेंट होने वाला है, उसके पहले वो आपको सूचित करते हैं, वो आपको इंडिकेट करते हैं कि ये हो सकता है. दैट इज लीडिंग इंडिकेटर्स. एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं. देयर इज अ हेवी डिमांड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. देयर इज अ हेवी डिमांड फॉर द कैपिटल इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स, उनकी बहुत डिमांड है. इसका मतलब कि इन फ्यूचर देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. इनकी डिमांड, कैपिटल गुड्स की ज्यादा डिमांड है. दैट इंडिकेट्स कि आगे जाके प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दैट इज अ लीडिंग इंडिकेटर, वन कैन से. सो लीडिंग इंडिकेटर्स लीड्स द चेंज, लीड्स द इवेंट. वो इवेंट के आगे चलते हैं एंड दे हेल्प यू टू प्रेडिक्ट द चेंज. मे बी वो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जनरली वो होता है. तो मैंने बोला जो बादल छा जाते हैं, आप हवा चलती है, ये सब चीजें आपको बोलते हैं कि बारिश हो सकती है. दैट इज द लीडिंग इंडिकेटर्स. सम इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स. एग्जांपल, आप किसी एरिया से जा रहे हो और आप बोलते हो यहाँ पे बारिश हो चुकी है. क्यों? बिकॉज मे बी वहां पे पानी, एक कहाँ पे पानी दिख रहा होगा आपको, हरियाली छा जाती है वगैरह, ये सब चीजें से आप बोल सकते हैं यहाँ पे बारिश होके गई, 1-2 दिन में बारिश हुई होगी या रिसेंटली बारिश हुई होगी. दोज आर लैगिंग इंडिकेटर्स. इवेंट हो चुका है, चेंज हो चुका है, बारिश हो चुकी है, उसके बाद वो जस्टिफाई करते हैं कि यस ये चेंज हो चुका है. सम इंडिकेटर्स पहले ही बोल देते हैं कि बारिश होने वाली है एंड सम इंडिकेटर्स बारिश होने के बाद कंफर्म करते हैं वो चेंज को. लीडिंग इंडिकेटर्स इंडिकेट्स की चेंज हो सकता है एंड लैगिंग इंडिकेटर्स कंफर्म्स द चेंज. वो कंफर्म करते हैं कि ये चेंज हुआ है.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आप ट्रैवल कर रहे हो और वहां पे आपको बहुत सारा पानी, राइट, आपको लगता है कि वेट है एरिया वगैरह प्रॉपरली, राइट, वहां पे हरियाली चाहिए वगैरह, तो आप बोलोगे यार यहाँ पे बारिश अच्छे से होती है या बारिश हो चुकी है. सो दैट इज अ लैगिंग इंडिकेटर्स. अनदर एग्जांपल जो इकोनॉमिक के टर्म्स में, ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ सो दैट आप कंपेयर कर सकते हो. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, हाँ, लैगिंग इंडिकेटर का एग्जाम्पल जो बाद में होता है, राइट, यस, जो मॉड्यूल में दिया वही मैं बोलता हूँ, और अच्छा एग्जाम्पल है. इफ देयर इज a heavy demand for electrical equipments, sudden heavy demand for the fans, ACs, या राइट, ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टीवी वगैरह, तो वन कैन से कि मे बी यहाँ पे ज्यादा लोग रहने आए इस एरिया में, यहाँ पे हेवी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, राइट, नए प्रोजेक्ट्स बने होंगे और वहां पे लोग रहने के लिए आए होंगे, एंड देयरफॉर इतने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की डिमांड हो रही है, होम अप्लायंसेस की डिमांड हो रही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज द थिंग. लाइक एग्जाम्पल, आप ऐसे भी देख सकते हो कि समर आने वाला है, तो देयर इज अ मोर डिमांड फॉर फैन, एसी, कूलर एक्सेट्रा. दैट इज अ लीडिंग इंडिकेटर. अरे ये इंडिकेट कर रहा है कि गर्मी आने वाली है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सम आर लीडिंग, सम आर लैगिंग. समझ में आ रहा है? सो लैगिंग इंडिकेटर्स कंफर्म्स द चेंज. चेंज होने के बाद वो आते हैं और वो कंफर्म करते ही चेंज हुआ है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर. देन some are occurs along with the change. उनको concurrent indicator बोला जाता है. कौन से इंडिकेटर बोला जाता है उनको? कोइंसिडेंटल और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स बोला जाता है. कोइंसिडेंटल मतलब जब चेंज हो रहा है तभी वो इंडिकेटर्स होते हैं. लाइक बारिश होती है, बहुत बारिश हो रही है तो लाइटनिंग वगैरह होती है. समझ में आ रहा है? पानी जोर जोर से बहना स्टार्ट हो जाता है. दे दे कंफर्म की बारिश हो रही है. एग्जाम्पल, मैं क्लासरूम में बैठा हूं, सब बंद है, खिड़की वगैरह बंद है, मुझे बाहर का नहीं दिख रहा है, बट मुझे आवाज आ रही है पानी बरसने की वगैरह, तो मैं वो बोल सकता हूँ कि बारिश हो रही है. सो दोज थिंग्स, राइट, अपीयर्स अलोंग विद द चेंज. जैसे चेंज होता है उसके साथ वो चलते हैं. चेंज के पहले जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो चेंज होने वाला ये बोलते हैं, उनको लीडिंग बोलते हैं. वो लीड, दे लीड द चेंज, लीडिंग इंडिकेटर्स. सम इंडिकेटर्स चेंज इवेंट होने के बाद वो इवेंट को कंफर्म करते हैं, उनको लैगिंग इंडिकेटर्स बोले जाता है. एंड सम इंडिकेटर्स आर कोइंसिडेंटल और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स जो चेंज के साथ चलते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एग्जांपल, देयर इज अ हेवी डिमांड फॉर द सीमेंट, राइट, स्टील वगैरह. दैट मींस कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है. सो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अच्छे से चल रही है, एंड देयरफॉर देयर इज अ मोर डिमांड फॉर दैट. सो दैट इज अ कॉन्करेंट, वो साथ में चलता है. So some indicators are leading, some indicators are concurrent or coincidental, and some indicators are lagging. अगर इन indicators को हम as a barometer use करते हैं, in that case that will help us to project or predict the demand. So इसमें example दिया है, meteorologist जैसे barometers use करते हैं to like to predict the rainfall. Similar basis, the firms will be using economic indicators to predict the or to forecast the demand. This method does not depend on your historical data. It depends on the indicators, economic indicators. समझ में आ रहा है? Then, yes, मतलब इसमें past experience की जरूरत नहीं है. Indicator study करो and you will understand the changes, right? और with those changes, you can predict your demand. ठीक है? So three types of indicators: leading, coincidental or concurrent, and the lagging indicators को study करो. Right, form the index, study them, you will be in position to predict your demand, forecast the demand. May not your demand, forecast the demand is exactly same, but at least you will be prepared for the changes. So that is barometric method. So अभी हमने कौन कौन से मेथड स्टडी किए? फर्स्ट मेथड स्टडी की बायस इंटेंशन, सर्वे ऑफ बायस इंटेंशन. दूसरा हमने हमारे सेल्स टीम का इंटेंशन, लाइक उनसे एस्टिमेट मांगा, लाइक कलेक्टिव ओपिनियन मेथड. तीसरा हमने एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड, उसमें डेल्फी मेथड आ गई, उसमें डेल्फी मेथड आ गई. ठीक है? एंड जो फोर्थ मेथड हमने जो स्टडी की वो थी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स.
या हम उसको कंट्रोल लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, या हम उसको कंज्यूमर क्लिनिक अप्रोच भी बोल सकते हैं, राइट? ये 4 स्टडी किए, ये 4 बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल डेटा, योर पास्ट एक्सपेरिमेंट। बट ये जो 5th मेथड स्टडी कर रहे हैं, which is right barometric method, that is more based on the economic indicators. It does not require your past data, past experience. आप indicators को study करो, and indicators will help you to like predict the demand. Example मैं बोलता हूँ, जब हम स्टॉक मार्केट की या लोग ट्रेडिंग करते हैं ऐसे बोलते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल ट्रेडर्स। सम आर फंडामेंटलिस्ट, मींस वो अकाउंट समझते हैं, बैलेंस शीट स्टडी करते हैं, पी&एल स्टडी करते हैं, एंड दे डिसाइड व्हाट विल बी द प्राइस और व्हाट इज द फ्यूचर एक्शन। वो लाइक न्यूज वगैरह सब स्टडी करते हैं एंड वो लेते हैं। एंड देयर आर सम लाइक जो टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं उनको। एक होते हैं फंडामेंटल स्टडी करते हैं, रेशियोज वगैरह, रेशियोज, बैलेंस शीट, पी&एल, न्यूज, ये स्टडी करके ट्रेडिंग करते हैं, वो फंडामेंटल्स बोला जाता है उनको। एंड दूसरे होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मतलब टेक्निकल एनालिसिस में यू डोंट रिक्वायर टू रीड द बैलेंस शीट, यू डोंट रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द पी&एल, यू डोंट रिक्वायर टू गो थ्रू द न्यूज वगैरह नहीं। आप जो ग्राफ्स होते हैं, मार्केट के जो ग्राफ्स है, उन ग्राफ को स्टडी करो एंड यू कैन प्रोजेक्ट द ट्रेंड। आप मार्केट को स्टडी करके कर सकते हो। मेनी टाइम्स इट इज सेड दैट जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, राइट, they understand the change well before the fundamental analyst, ऐसे बोलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ट्रेडिंग करने वाले 2 लोग होते हैं, एक फंडामेंटल वाले होते हैं एंड दूसरे होते हैं जो ग्राफ्स वगैरह है वो सब स्टडी करेंगे, इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। एंड उन इंडिकेटर को हेल्प करके कोई लोग प्राइजेस प्रेडिक्ट करते हैं, अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, राइट। सो अगर आपके पास दोनों है, इट्स ऑलवेज गुड। दोनों है तो फंडामेंटल भी है और टेक्निकल भी आपके पास, दोनों एनालिसिस है, तो इट इज लाइक डबल वर्ड शॉट। उससे फायदा क्या होता है, राइट? उससे ये फायदा होता है कि ऑब्वियसली आपका एक्सपर्टाइज ज्यादा रहेगा। आप एक में अगर गलत भी जाते हो तो दूसरा आपको करेक्ट करेगा, राइट? सो दोनों होना इज गुड, ऐसे बोला जाता है। नाउ कैन these methods use combine? Yes, why not? Like experts can use, right, your indicators. Expert, हम उनको एक्सपर्ट क्यों बोलते हैं? Because they know economy better than us and they know all these indicators and everything. So obviously ये methods mix होते हैं। Obviously methods are overlapping, ऐसे में थोड़ी बोल रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव मेथड है। हम बायर सर्वे एंड सेल्स फोर्स ओपिनियन दोनों ले सकते हैं, हम दोनों कर सकते हैं। दे आर ओवरलैपिंग, ऐसे मत बोलो कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब वो कभी एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे नहीं। मेनी टाइम्स द फर्म्स फॉलो मिक्स्ड, राइट, द अप्रोचेस, ऐसे नहीं कि यही अप्रोच फॉलो किए जाएंगे। सो ओवरऑल, राइट, देन देखो, इफ यू, किसी ने लिखा कि सर लाइक आप शेयर प्राइसेस वगैरह के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, देयर आर वेरी लाइक ऐसे इंडिकेटर्स है जो हमें पता भी नहीं। आई एम ए टेक्निकल एनालिस्ट, मैं टेक्निकल में डील करता हूँ, आई डोंट गो फंडामेंटल। एक्चुअली आई नो द फंडामेंटल बिकॉज रेशियो वगैरह आई हैव लर्न और मैंने उस पर काम भी किया है, बट आई बिलीव मोर, राइट, फंडामेंटल तो हमेशा रहेगा, ऑब्वियसली फंडामेंटल आना ही चाहिए, बट आई ट्रेड यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। मैं टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करता हूँ व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग, इसलिए मैं आपको जो चीजें बोलूंगा वो आपको समझेंगे। लेकिन एमएससीडी वगैरह अगर ऐसे टर्म्स यूज करने लगूंगा जो आपने कभी सुने नहीं, आईवी, राइट, अगर ऐसे कोई आरएसआई वगैरह जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, अगर मैं वो वर्ड्स यूज करूंगा तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बट अगर वही मैं आपको बोलूंगा कि सेल्स रेशियो कितना है, जीपी रेशियो कितना है, राइट, ये क्या है, वो क्या है, वो फंडामेंटल हो गया। फंडामेंटल आपको जल्दी समझ में आएगा बिकॉज आप वो करते हो। टेक्निकल के लिए आपको प्रॉपर उसकी स्टडी करनी होती है, वो ग्राफ्स वगैरह होते हैं, वो ग्राफ को स्टडी करना होता है। सो आई लाइक द ग्राफ्स, मैं पहले से मुझे ग्राफ पसंद है, तो राइट आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स लाइक टेक्निकल एनालिसिस। मैं प्रॉपर वो जो इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, राइट, एक 10-12 इंडिकेटर्स लगा के उसको स्टडी करना, कैसे चल रहा है, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना वगैरह, उसमें मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ। फंडामेंटल तो मुझे आता है बट आई डोंट गो मोर इन फंडामेंटल। फंडामेंटल के लिए मतलब आपको उस कंपनी का आपको पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए कि उसने क्या क्या काम किए, क्या क्या किए, उनके न्यूज वगैरह। मैं उतना उसमें दिमाग नहीं लगाता, मैं डायरेक्टली टेक्निकल पे आता हूँ। वो टेक्निकल बोलता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड आई डू trading on the basis of technical analysis.
हर कोई अलग अलग होता है. लाइक अभिषेक सर मोर इन फंडामेंटल एंड आई एम मोर इन टेक्निकल, बट ऑब्वियसली वी एक्सचेंज आवर थॉट्स, वो होता है राइट. वो फंडामेंटल पे ज्यादा काम करते हैं एंड वो जनरली आपने देखा होगा, इसलिए वो जो शेयर्स के बारे में बात ज्यादा करते हैं, बिकॉज वो चीजें आपको जल्दी समझ में आएगी. एंड आई टॉक लेस अबाउट इट बिकॉज जो मैं चीजें बोलूंगा वो आपको पता ही नहीं होगी, बिकॉज टेक्निकल पूरा अलग है. टेक्निकल के लिए राइट आपको पूरा उसके अलग कोर्सेस है. आई हैव डन दैट. मैंने उस पर ऑलमोस्ट 2-3 साल सीखा है वो सीए होने के बाद, टेक्निकल एनालिसिस. तो वो मुझे पसंद भी आया, इसलिए मैंने किया. तो हर एक का अलग रहता है. आई डोंट सी पी रेशियो, आई डोंट सी लाइक जीपी रेशियो, मैं वो नहीं देखता हूँ, करंट रेशियो वगैरह. आई डोंट रिक्वायर दैट. मैं टेक्निकल में ज्यादा काम करता हूँ. सो जैसे एक नॉलेज है, नॉलेज के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, ऑन सिमिलर बेसिस अलग अलग ब्रांचेस होते हैं. और one day or some other day you will also, some of you may enter into technical, some of may you enter into fundamental, but at the end everyone right, it's your, आपको समझना है आपको क्या करना है. if I decide, अगर मुझे बहुत ही जरूरत पड़ी तो obviously I can understand the P ratio and everything, वो ratio analysis वगैरह, but generally I don't, जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ I generally don't refer balance sheet and P&L, to be very frank I don't do that. वो फंडामेंटल, प्रॉपर फंडामेंटल आ गए राइट. वो न्यूज वगैरह सब चेक करते हैं, सब वो चीजें फॉलो अप करते रहते हैं, वो सब चीजें देखते रहते हैं राइट. टेक्निकल्स जनरली डायरेक्टली ग्राफ लेते हैं, ग्राफ के हिसाब से करते हैं. जिनको ग्राफ रीड करना आ गया, जिनको ये चीजें समझने आ गई, लाइक वो ओआई डेटा वगैरह रहता है, बहुत कुछ चीजें रहती है, वो अगर आपको समझने आने लगी तो आप समझोगे. जनरली ये चीजें आपके सीएफ सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए आई डिड इट आफ्टरवर्ड्स. जिसने वो क्वेश्चन पूछा उसके लिए वो आंसर है. इसलिए मैं जनरली बात भी नहीं करता, बिकॉज वो चीजें समझने के लिए पहले वो इंडिकेटर्स पता होने चाहिए. सो मैंने एक बार बोला भी था, आपको दिखाया भी था शायद से, डॉन जॉन्स नीचे आ रहा था, देखो लास्ट 2025 लाइक कब से 2008 के बाद अब भी वो नीचे आ रहा था. ये टेक्निकल एनालिसिस है, वो फंडामेंटल नहीं बात करेगा, वो टेक्निकल बात करेगा. आई डू मोर इन ग्राफ्स, आई मोर लाइक मैं उसमें ज्यादा काम करता हूँ. सो इंडिकेटर्स हो सकते हैं, वो इंडिकेटर्स तो समझो एंड देन प्रिडिक्ट द डिमांड, प्रिडिक्ट द चेंजेस. Now, what are the statistical? Last one. अरे यार पूछ रहे. Yes, obviously. There are separate courses. अरे बहुत सारे हैं, राइट. आप बहुत कुछ देख सकते हो. But this is not the time actually to focus on all those things. अभी एटलीस्ट इंटर तो निकलो, इंटर के बाद यू कैन डू द ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये अभी आपको डिग्री के बारे में सोचना चाहिए. पैसा तो आपको वैसे भी मिलेगा, डोंट वरी. ठीक है. सो उसके कोर्सेस होते हैं. ऑब्वियसली मैंने देखा है देयर आर मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए अलग से पढ़ते भी है. एंड एक बार आपने समझ लिया तो ऑब्वियसली फिर आप आपका एनालिसिस यूज कर सकते हो. जैसे मैंने बोला आई नेवर, मैं रिलायंस में ट्रेड करता हूँ. रिलायंस की शेयर प्राइस पूछो मुझे, बाकी सब पूछो मैं बोलूंगा, बट रिलायंस का टर्नओवर क्या है आई एम नॉट बॉदर्ड, मुझे फर्क नहीं पड़ता. तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी में डील करता हूँ, मैं क्रूड ऑयल में डील करता हूँ, बट मुझे नहीं पता एक्चुअल में क्या होता है. मैं चार्ट स्टडी करता हूँ, मेरे जो इंडिकेटर्स है वो मैं स्टडी करता हूँ, और इंडिकेटर के हिसाब से आई डू ट्रेड. वो किसी को समझाना भी बहुत कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक. इसलिए अपना अपना करना इज ऑलवेज गुड. देन बट अगर आप बैलेंस शीट वगैरह स्टडी करके करोगे तो इट इज इजी टू टेल यू एज वेल, आपको समझाना भी इजी हो जाता है. सो माय ग्रुप, माय एंटायर ग्रुप टेक्निकल एनालिसिस में काम करता है. सो जब भी हम मिलते हैं तो हमारा यही चालू रहता है. ऐसे डिपेंड्स ना, आप किस सर्कल से भी बिलोंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड्स. देखो मैं स्टैटिस्टिकल में ज्यादा नहीं जाऊंगा बिकॉज मे बी यू आर लर्न इन योर सीए फाउंडेशन. Which are the statistical methods? First statistical method is trend projection method. Trend projection method. What do you mean by trend projection method? It is considered as one of the like unexperienced approach. Naive approach इसको माना जाएगा, right? ये unexperienced approach माना जाएगा because इसमें हम क्या करते कि like ये कौन फॉलो करता है? ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड. ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड मैं आपको एग्जांपल देता हूं. ये इसमें मैंने बहुत काम किया इसलिए मैं बोलता हूं. क्यों? एग्जांपल, आईआरसीटी का आईपीओ 2 साल पहले, 1 साल पहले आया. तो नाउ इफ आई हैव टू प्रोजेक्ट द ट्रेंड, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं ग्राफ पे वगैरह, मैं उनके इंडिकेटर स्टडी करता हूं, आई डोंट हैव दैट मच डेटा. मेरे पास का 1 साल का ही डेटा है, 2 साल का ही डेटा है. बट अगर रिलायंस के लिए मैं ट्रेड लाइन वगैरह ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास ऑलमोस्ट 20-25 साल का डेटा है, बिकॉज वो पहले से कंपनी एग्जिस्टिंग में
लिस्टेड पहले से है, सो उनके लिए मैं वो ट्रेंड एनालिसिस कर सकता हूँ. टेक्निकल एनालिसिस इज गुड इफ यू हैव लॉट ऑफ डेटा. सो मैं ट्रेंड वगैरह, ट्रेंड इंक्रीजिंग है या ट्रेंड डिक्रीजिंग है या ट्रेंड फ्लैटर्ड है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स: इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड और कांस्टेंट ट्रेंड. सो तीनों में से एक ही हो सकता है ना. एंड नो ट्रेंड रिमेन्स फॉरएवर. कोई भी ट्रेंड सेम नहीं रहता, वो चेंज होने के लिए होता है ट्रेंड. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना कि ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, हम बहुत पुराने साल, बहुत डेटा कलेक्ट करेंगे रिलेटेड टू सेल्स एंड सेल्स. लाइक 2000 का इतना सेल था, 2001 का इतना था, 2002 का इतना था, लाइक ऐसे आज 2020 तक निकालेंगे. आपके पास जितना अवेलेबल है उतना जनरली हम लेंगे, जितना पीछे जाओगे उतना बेटर रहेगा. एंड वी विल गेट ए टाइम सीरीज. एक टाइम सीरीज पता चलेगी, ये चैप्टर है शायद से आपसे फाउंडेशन में. यू विल गेट टाइम सीरीज. तो एक सीरीज पता चलेगी एंड यू कैन प्रेडिक्ट 2021 में कितना होगा, 2022 में कितना होगा, 2023 में कितना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा, द टाइम सीरीज. जो मैंने सेल्स का डेटा कलेक्ट किया है उसको मैंने क्रोनोलॉजिकली मैं लगाऊंगा और फिर मुझे ट्रेंड पता चलेगा क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. अगर इंक्रीजिंग है किस रेट से इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो किस रेट से डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट चल रहा है तो कैसे चल रहा है. एंड वो ट्रेंड मैं बोलूंगा कि जो पीछे था 10 साल में हुआ है, जो 15 साल में हुआ है, लास्ट 5 ईयर में हुआ है, वही आगे भी चलेगा, ये एज्यूम करके हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं. समझ में आ रहा है. that may go wrong. मैं ये नहीं बोल रहा कि that will be the correct, but generally ट्रेंड कंटिन्यू होता है. ट्रेंड कंटिन्यू होगा. जब 10 साल का डेटा स्टडी करके अगर आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो प्रोजेक्शंस करेक्ट हो गए, तो उसको बोला जाता है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड. ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, बट इट इज वेरी अनएक्सपीरियंस मेथड, राइट. इसमें हम टाइम सीरीज प्लॉट करते हैं. यू नो, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे टाइम सीरीज के, मे बी 12th में या फाउंडेशन में. आई हैव फॉरगॉटन. सो जस्ट टाइम सीरीज उसमें फॉलो होती है. दूसरा है ग्राफिकल मेथड. ये जो टाइम सीरीज मिली ना मुझे, जो नंबर्स में मिले मुझे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, उसके सेल्स, अगर मैं उसको ग्राफ पे प्लॉट करता हूं तो मुझे कर्व मिलेगी. अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो अपवर्ड स्लोपिंग मिलेगी, अगर सेल्स डिक्रीज हो रहा है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगी. एंड अगर मुझे कर्व मिले तो आई विल एक्सपेक्ट कि वो कर्व आगे ऊपर जाए. अगर ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग है 2020 तक तो मैं बोलूंगा ये ऊपर और जाएगी, तो आई कैन प्रेडिक्ट द सेल्स. अगर वो डिक्रीज हो रही है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो डिक्रीज ही होगी, तो आई कैन प्लॉट द फ्यूचर पॉइंट्स एज वेल एंड अकॉर्डिंगली आई कैन प्रोजेक्ट माई सेल्स, आई कैन प्रेडिक्ट माई डिमांड. सो एक टाइम सीरीज बना के सो पास्ट का ट्रेंड लेना है, पास्ट का डेटा लेके हम एक प्रोजेक्ट करेंगे क्या आगे रहेगा. अगर पहले से इंक्रीज होता है, लाइक रिलायंस, इफ यू चेक द शेयर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो हम बोलते हैं घोड़ा है, राइट, और ये आगे ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा. मगर अगर भेल देखते हो, भेल वाला स्टॉक, वो पहले से डिक्रीज होता आया है, हम इसको गधा बोलते हैं, वो डिक्रीज होगा और आगे गधा ही रहेगा, डिक्रीज होगा. तो आपने किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, घोड़े में या गधे में? घोड़े में. अगर इन्वेस्ट करना है तो घोड़े में करो, बिकॉज वो आपको ऊपर लेके जाएगा. सो ये मैंने क्या देखा, लास्ट 5 साल का, लास्ट 10 साल का मैंने ट्रेंड लाइक डेटा कलेक्ट किया और मैंने उसको ट्रेंड देखा कि क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है. एंड अकॉर्डिंगली आई विल प्रोजेक्ट द ट्रेंड. मैं वो ट्रेंड को फ्यूचर में लेके जाऊंगा. सो इसलिए इसको बोला जाता है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड. स्टैटिस्टिकल मेथड का एक ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, बट वेरी अनएक्सपीरियंस मेथड, राइट. ग्राफिकल मेथड, उसी ट्रेंड को अगर हम ग्राफ में डालते हैं तो 2010 से सपोज 2020 तक हमारे पास डेटा है, तो हमने उसको ग्राफ में डाला तो या तो हमें अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगी, या हमें कांस्टेंट वाली मिलेगी. तो उस ट्रेंड को अगर आगे लेके जाते हैं, उसी स्लोप को अगर आगे लेके जाते हैं, तो वी कैन ऑल्सो प्लॉट द फ्यूचर पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, राइट. सो उसका एक्सटेंशन है, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड का एक्सटेंशन है ग्राफिकल मेथड. इट इज फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड भी बोला जाता है, फ्री हैंड प्रोजेक्शन, बिकॉज हम अगर एक ग्राफ ऐसे फ्रीली निकालेंगे, राइट, फ्री हैंड से निकालेंगे तो ऊपर कहां तक जाएगा या नीचे कहां तक जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है ग्राफिकल मेथड को फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड. बट जनरली दीज मेथड्स आर नॉट यूज्ड. दूसरा है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये आपके स्टैटिस्टिक्स में रहेगा. लीस्ट स्क्वायर मेथड, आई वोंट गो इन डीप, खाली नाम पता होने चाहिए. लीस्ट स्क्वायर मेथड, बट उसमें एक प्रॉब्लम है, राइट. लीस्ट स्क्वायर मेथड इज नॉट यूजफुल
when economy is very what I will say is very स्पेक्युलेटिव नहीं बोल सकता मैं, स्पेक्युलेटिव नहीं, इज चेंजिंग, कंटिन्यूअसली चेंजिंग, उसको आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूअसली चेंजिंग. व्हेन इकोनॉमी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, फिक्स पैटर्न नहीं है. लाइक अगर आप एकदम टॉप पे हो, बूम पे हो, या एकदम डाउन में हो, इकोनॉमी बहुत डाउन में है, ट्रफ, एंड एकदम टॉप में है, उसको बूम बोला जाता है. एक आपके लिए मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है, स्क्रीन. लेट मी शेयर द स्क्रीन. एक्चुअली लास्ट टॉपिक के टर्म्स है, बिजनेस साइकिल के टर्म्स है. सपोज दिस इज योर बिजनेस साइकिल. एवरी इकोनॉमी पासेस थ्रू और एवरी फर्म पासेस थ्रू ए साइकिल. उसमें 4 फेजेस होते हैं, लाइक दिस. सो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द साइकिल, इसको ट्रफ बोला जाता है. दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, इसको पीक बोला जाता है, पीक, हाईएस्ट पॉइंट. मतलब यहां से अपनी इकोनॉमी रिकवर हो रही है, एक्सपांड हो रही है. दिस इज एक्सपेंशन फेज, एक्सपेंशन. दिस इज द पीक, या इसको बूम बोला जाता है, इकोनॉमी बूम में. दिस इज ट्रफ. लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड एज ट्रफ, राइट. जब इकोनॉमी ट्रफ से पिक की तरफ जाती है तो एक्सपांड हो रही है, उसको रिकवरी बोलते हैं कोई लोग, रिकवरी. इकोनॉमी रिकवर हो रही है, लोएस्ट पॉइंट से ऊपर जा रही है, रिकवर हो रही है. यहाँ पे उसके आगे उसकी ग्रोथ नहीं है, दैट इज अ पिक पॉइंट, पिक पॉइंट. और फिर नीचे आएगी, कभी ना कभी नीचे आओगे ना, या हमेशा आपका स्लोप अपवर्ड ही रहेगा. दिस इज कॉल्ड एज रिसेशन, डिप्रेशन, रिसेशन, जो भी बोलना है. फिर आप आओगे ट्रफ. बट इफ यू सी, this is this lowest point and this lowest point, but this is upper, a lower high. Okay, this is lower low, sorry, this is lower low, ये low है और ये भी low है, but this low is higher low, this low is a higher low, higher low. मतलब ओवरऑल भले ही इकोनॉमी नीचे आ रही है, बट पहले से तो बेटर है, पहले से तो बेटर है, हायर लो. यहाँ पे फिर से वो रिकवर होगी एंड पिक पे जाएगी. दिस इज पिक, दिस इज ऑल्सो पिक, दिस इज हाई, दिस इज ऑल्सो हाई, बट दिस हाई इज अ हायर हाई, हायर हाई. सो मतलब ऊपर जा रहे हैं, राइट. आप फिर नीचे आओगे, बट दिस लो विल बी हायर देन द प्रीवियस लो, इसलिए हायर लो बोला जाएगा. ये जो ऊपर, दिस पीक विल बी हायर देन द प्रीवियस पीक, तो दैट इज हायर हाई. सो हायर लो, हायर हाय, हायर लो, हायर हाय करते करते इकोनॉमी ऊपर जाएगी, ज्याला आपण वर जातो म्हणतात, राइट. सो स्टेयरकेस वैसे लो जो रहेगा पहले लो से ऊपर रहेगा, एंड हाई जो रहेगा पहले हाई से हायर रहेगा. तो हायर हाई एंड हायर लोस करते करते इकोनॉमी ऊपर जाएगी. तो हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, बट ग्रो क्या ऐसे स्ट्रेट ऐसे थोड़ी ग्रो होती है. ग्रोथ इज ऑल्सो अप्स एंड डाउन एंड अप्स एंड डाउन एंड अप्स एंड डाउन. ये बिजनेस साइकिल है. तो जब इकोनॉमी यहाँ पे होती है ट्रफ में, या जब इकोनॉमी बूम में है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड शुड नॉट बी अप्लाइड, बिकॉज वहां पे वो मेथड काम नहीं करती है. दिस इज फॉर द ऑब्जेक्टिव, ठीक है. यहाँ पे लिखा भी होगा, लेट मी शो यू. लीस्ट स्क्वायर मेथड में मैंने हाईलाइट भी किया है. ये स्टैटिस्टिकल मेथड से उसके प्रॉब्लम्स वगैरह हमें नहीं है, जस्ट थोड़ा डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. स्टैटिस्टिकल मेथड में मैंने सबसे बोला कि सबसे पहले ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, पास का डेटा निकाल के ट्रेंड ढूंढो और ट्रेंड को आगे लेके जाओ. यू कैन प्रेडिक्ट योर सेल्स, राइट. यहाँ पे टाइम सीरीज हम फॉर्म करते हैं क्रोनोलॉजिकली, इस राइट. दूसरी ग्राफिकल मेथड, जो टाइम सीरीज मिली है उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो हमें एक ग्राफ मिलेगा, एक फ्री हैंड. अगर कर ड्रॉ करते हैं तो हम उस कर को आगे भी लेके जा सकते हैं, राइट. और फ्यूचर सेल्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं. दिस मेथड इज कॉल्ड एज फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड. फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन और लीस्ट स्क्वायर मेथड ऐसे एक मेथड है, ठीक है. मैथमेटिकल मेथड से आई एम नॉट बेटर पर्सन टू टीच यू दिस, राइट. सो आई एम नॉट दैट पर्सन. मेरी मैम को पूछो, शी कैन हेल्प यू आउट, ठीक है. The major limitation of this method, least square method, is that it cannot be used when the
ट्रेंड इज साइक्लिकल, ट्रेंड बहुत साइक्लिकल है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, ठीक है, एंड विथ शार्प टर्निंग पॉइंट्स ऑफ ट्रफ्स एंड पिक्स, बहुत शार्प है, मतलब जनरली क्या होता है, इकोनॉमी नीचे भी आएगी ना तो इट विल बी डाउन फॉर लाइक 6 months 7 months 1 year 2 years, बिकॉज राइट ये मेरा टाइम एक्सिस है, तो इकोनॉमी डाउन आ रही है एंड इट विल बी देयर डाउन में, वो 1 साल 2 साल 3 साल रहेगी एंड देन इट विल रिकवर, फिर बूम में आएगी तो वो 2-3 साल 3-4 साल रहेगी और फिर नीचे आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लेता है, अगर रहेगा ट्रफ पोजीशन में, लोएस्ट पोजीशन में तो ज्यादा साल रहेगी, अगर ऊपर पीक पे रहेगी तो ज्यादा साल रहेगी, तो वहां पे वो कर्व फ्लैट हो जाएगी, ऐसे बोलो, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं है, इट इज वेरी शार्प। शार्प मतलब क्या, बहुत क्विकली नीचे भी आती है और ऊपर भी जाती है, और बहुत क्विकली ऊपर जाके नीचे भी आती है। इट डोंट रिमेन लाइक फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द पीक और इन द ट्रफ। नीचे जाएगी तो बहुत जल्दी ऊपर भी आएगी, और जब ऊपर हाईएस्ट पॉइंट रहेगा तो उतने जल्दी नीचे भी आ जाएगी। सो ऐसे केसेस में व्हेन द टर्न्स, द टू टर्न्स, नीचे सबसे बॉटम वाले को बोला जाएगा ट्रफ एंड सबसे ऊपर वाले को बोला जाएगा पीक, ये जो टर्न्स है राइट, ये टर्न्स बहुत शार्प रहते हैं, मतलब इतनी क्विकली चेंज होता है पोजीशन, इसलिए इसको बोला जाता है साइक्लिकल। सो क्या लिखा है, दिस मेथड, the major limitation of this method is that it cannot be used when the trend is cyclical with sharp turning points of troughs and peaks. Also, this method cannot be used in the short term forecast. So, least square method का limitation क्या है? This method cannot be used when in the case of cyclical trend, means very sharp turns, उसमें ये यूज नहीं की जाएगी। This is for the MCQ theory है, and दूसरा this method is not good for the short term, this method is good for the long term। and दूसरा रिग्रेशन एनालिसिस, ये आपके 12th के मैथ्स में भी था। रिग्रेशन इज रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक एग्जांपल, ये एग्जांपल आपके इसमें रहेगा, अगर रेन अच्छा होता है तो हार्वेस्ट अच्छा रहेगा, रेन अच्छा नहीं रहेगा तो हार्वेस्ट नहीं रहेगा, ये तो कॉमन है। या दूसरा एग्जांपल, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप पास होगे, अगर नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। रिलेशन डाल रहे कि रेन पे हार्वेस्ट डिपेंड कर रहा है, एंड इफ यू ब्रिंग दैट रिलेशन इन द इक्वेशन you get a regression equation, y is equal to a plus bx, y is a quantity demanded, x is a variable on which quantity demanded depends। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल एंड उसकी डिमांड पे क्या इंपैक्ट रहेगा ये रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, एंड वी गेट ए इक्वेशन, मे बी लीनियर इक्वेशन हो सकता है या कर्वी लीनियर इक्वेशन हो सकता है, लीनियर इक्वेशन हो सकता है राइट, लिखा होगा कहाँ पे, तो लीनियर इक्वेशन हो सकता है, या दिस कैन बी कर्विलिनियर इक्वेशन, जो भी रहेगा एक इक्वेशन मिलेगा, विद दैट इक्वेशन यू कैन राइट फोरकास्ट द फ्यूचर सेल्स और फ्यूचर डिमांड। दिस इज मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, रिग्रेशन। मोस्ट, आपके फाउंडेशन के सिलेबस में भी रिग्रेशन है, 12th में भी रिग्रेशन था, सो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट राइट। सो स्टैटिस्टिकल मेथड 4, एक ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, हम प्रीवियस ईयर्स के डेटा लेंगे, जनरली सेल्स डेटा, डिमांड डेटा, एंड वी विल अरेंज इट क्रोनोलॉजिकली, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ए ट्रेंड, एंड उस ट्रेंड को हम फ्यूचर में लेके जाएंगे और प्रोजेक्ट करेंगे कि आगे क्या होगा। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो आगे कितना सेल होगा, अगर ये पास्ट ट्रेंड कंटिन्यू होता है, मतलब जो पास्ट में सिचुएशन थी, जो कंडीशंस थे, अगर वो फ्यूचर में भी रहेंगे तो मेरा सेल कितना होगा, मेरा डिमांड कितना रहेगी। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, बट इट इज वेरी न्यू मेथड, मतलब इट इज अनएक्सपीरियंस मेथड राइट। दूसरा, अगर उसी ट्रेंड लाइन को, अगर उसी ट्रेंड को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो वी विल गेट ए फ्री हैंड कर्व। अगर उस कर्व को हम ऐसे ही फ्री हैंड से आगे खींचते हैं तो हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में कितना सेल हो सकता है, कितनी डिमांड हो सकती है राइट। थर्ड मेथड इज फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन और लीस्ट स्क्वायर मेथड राइट। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता उसको एक्चुअली कैसे यूज करते हैं, मुझे वो देखना पड़ेगा राइट। एक्चुअल में वो लीस्ट स्क्वायर मेथड आई थिंक आपके सिलेबस में है, मुझे वो देखना पड़ेगा एक्चुअली उसको कैसे यूज करते हैं राइट। बट
This method cannot be used when the trends are cyclical, means there are quick turns, right? Trough and peak के quick turns है, तो उसमें ये method follow मत करो. कौन सी least square method? And if, right, you are want to short term forecast, don't go for the least square method. Least square method is generally used in the long run, right? Long term forecast के लिए use की जाती है. And regression analysis में we establish a relation between the quantity demanded and one of the variable. वो जो वेरिएबल रहेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, उसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोला जाता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो क्वांटिटी डिमांडेड है, एंड दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है. इनमें हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे जिसको हम इक्वेशन के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन, ऐसे कुछ तो बोलते हैं. आप आर वगैरह कुछ तो ढूंढते हो, कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह, राइट? सो वो हम ढूंढेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर आवर कमोडिटी. अगर एक्स चेंज होता है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड चेंज होता है, तो वाई कैसे चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांड कैसे चेंज होगी, ये हम ढूंढेंगे. दैट इक्वेशन कैन बी लिनियर इक्वेशन और कर्विलिनियर इक्वेशन, डिपेंड्स. ठीक है? सो दीज आर वेरियस मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. कौन कौन से मेथड है मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान देना, राइट? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, दिस मेथड इज मोस्ट डायरेक्ट मेथड, राइट? सब किस पे डिपेंड मत करो, डायरेक्टली बायर के पास जाओ. दिस इज यूज्ड इन द शॉर्ट रन. इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरव्यूज ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर्स. कंप्लीट इनोमिनेशन मेथड, सैंपल सर्वे मेथड, एंड यूज मेथड मींस यूज फॉर फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर द इनपुट्स. The burden of the forecasting is put on the customer. जो important points है मैंने highlight करके रखे हैं. This demand is useful when the bulk of the sale is made to industrial producers who generally have their definite future plans. मैंने बोला अगर आप producers को sell कर रहे हो, अगर आप producers को sell कर रहे हो तो this method is best because your buyer producer knows his future plans. ठीक है? Household के लिए method इतनी अच्छी नहीं है. Collective opinion method, जिनके पास मॉड्यूल देखें अंडरलाइन these sentences. Salesforce opinion method or grassroots approach method, right? Another name. Step 1, ask your salesman to estimate the sales in their respective territories jurisdiction. Then these estimates of the salesman are consolidated to find out the total estimate. सबका estimate हम add करेंगे and that will be my total estimate. However, I will consider the optimistic view and pessimistic view. So I will revise, right, my figures. These estimates are reviewed, right, to eliminate the bias of optimism and pessimism on the part of the salesman. And फिर जो revised estimate मिलेगा, हम उसको और refine करेंगे for your, right, other factors, because you are going to change the factors like sales, price, advertisement वगैरह करने वाले हो, and some secular change forces, changes in the secular forces like purchasing power, income distribution, employment, population, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है. इकोनॉमी में अपने आप चेंज होते हैं, तो उन चेंजेस को, सेक्युलर चेंजेस को भी हम फैक्टरिंग करके हमारी डिमांड रिफाइन करेंगे. ठीक है? It is a simple method based on first-hand information. There are two types of data, first-hand data and secondary data. If you remember, primary data and secondary data. Primary data को हम बोलते थे it is first-hand data because ये हमारे sales team में खुद जाके वो data collect किया है. हमने कहा से Google वगैरह पे data secondary sources से data उठाया नहीं, ये first-hand data है. So collective method gives you first-hand data. Even, right, buyer survey also gives you first-hand data. ठीक है? हम कहां से डेटा ले नहीं रहे, हम खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है? सिंपल एंड बेस्ड ऑन द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ दोज हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेल्स. बट इट इज सब्जेक्टिव. इट इज आल्सो सब्जेक्टिव बिकॉज सेल्स पर्सनल के ओपिनियंस चेंज हो सकते हैं. दिस इज यूजफुल इन द शॉर्ट रन. एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड अभी मैंने बोला, प्रोफेशनल मार्केट एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट को हम अपॉइंट करते हैं, राइट? हम उनको एक क्वेश्चनियर्स देके उनकी इंटरव्यूज लेते हैं. This method is also called as Delphi method, right? Developed by Olaf Hilmer, right? At Rand Corporation of the USA. ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तीन नाम, Delphi, that Olaf Hilmer, उसका प्रोनाउंसिएशन जो भी रहेगा वो, and at Rand Corporation of USA, right?
देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम वेरियस राउंड्स कंडक्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का, और उनके अलग अलग ओपिनियंस लेते हैं विद रीजनिंग्स, और हम बाकी लोगों में सर्कुलेट करते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी, विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द ओपिनियन प्रोवाइडर। और फिर सबके पास सबके ओपिनियंस आ जाएंगे तो एक एक रिफाइंड ओपिनियन मिलेगा। ये प्रोसेस तब तक की जाएगी until we get the convergence of the opinion. This method is suited for the circumstances where there are drastic changes, the changes which are very difficult to deal in, intractable changes, right? And this is good method to solve the complex problems or complex questions. This is cheaper method and even speed is more as compared to other methods. Statistical methods में हमने देखा trend projection method, also known as classical method, considered to be an unexperienced approach, naive approach or unexperienced approach, ठीक है, of the demand forecasting। इसमें हम टाइम सीरीज डेवलप करते हैं, राइट? फिर उस टाइम सीरीज को यूज करके हम ग्राफिकल मेथड फॉलो कर सकते हैं या लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉलो कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज फ्री हैंड प्रोजेक्शन मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड इज नॉट गुड to in the short run, it is not good to project or like forecast demand in the short run, and when the trend is very cyclical, when the turns trough and जो पीक के टर्न्स है दे आर वेरी शार्प, मतलब इकोनॉमी उस फेज में बहुत कम टाइम रहती है, इकोनॉमी ट्रफ में या पीक पॉइंट पे बहुत कम टाइम रहती है। ऐसे केसेस में दिस मेथड इज नॉट गुड। रिग्रेशन एनालिसिस में हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, दैट इज माय क्वांटिटी डिमांडेड, एंड इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लाइक इनकम, प्राइस, एडवर्टाइजमेंट, और हम उनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, एंड वी मे गेट ए इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और कर्वीलिनियर इक्वेशन, जो भी मिलेगा हमें, राइट? एंड ऑन दैट बेसिस अगर हमारा एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज होगी या कितनी हो सकती है, हम फोरकास्ट करते हैं। दिस इज मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग। फिर हमने देखा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, राइट? दिस इज हम यहाँ पे स्टडी करते हैं फ्यूचर डिमांड इज एस्टिमेटेड बाय कंडक्टिंग द मार्केट स्टडीज एंड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द कंज्यूमर्स बिहेवियर अंडर एक्चुअल दो कंट्रोल्ड मार्केट कंडीशंस। एक्चुअल में हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट एक्चुअली करते हैं, बट कंट्रोल मैनर में करते हैं। हर जगह पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कोई स्पेसिफिक एरिया में करेंगे या अलग अलग एरियाज में कॉन्करेंटली करेंगे, साथ में करेंगे, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, वी डिसाइड कि कौन सा फैक्टर हम चेंज करने वाले, कौन सा डिटरमिनेंट हम चेंज करने वाले, एंड उसका क्या इंपैक्ट रहेगा वो हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है? दिस इज एक्सपेंसिव एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग। दिस इज ऑल्सो, राइट, थोड़ा उससे बेटर अप्रोच हो सकता है कंट्रोल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स और कंज्यूमर क्लिनिक्स, अंडर विच consumers are given specified sum of the money and asked to spend in a store on the goods with a varying price, packages, displays, etc. and उन रिस्पॉन्स से हम प्रोजेक्ट करते हैं हमारी डिमांड। बैरोमेट्रिक मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया, राइट? दिस मेथड डज नॉट डिपेंड ऑन द पास्ट डेटा, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन योर पास्ट एक्सपेरिमेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर like indicators, economic indicators, like meteorologist uses barometers, right? Firms uses economic indicators to project the demand or to predict the demand or forecast the demand. Three types of indicators: leading indicators, which leads the change, which occurs before the event occurs, जैसे बारिश के पहले बादल छा जाने, राइट? दूसरा कोइंसिडेंटल और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स, दे अपीयर अलोंग विद द चेंज, जैसे जब बारिश हो रही है तो आवाज आता है, लाइटनिंग होती है, कॉन्करेंट और कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। एंड थर्ड आर द लैगिंग इंडिकेटर्स, बारिश होने के बाद जब पानी वगैरह जमा हो जाता है, हरियाली हो जाती है, दैट इज लैगिंग इंडिकेटर्स, दे कंफर्म द चेंज। उन इंडिकेटर्स की हम एक इंडेक्स बनाएंगे, राइट? एंड उस इंडेक्स को हम स्टडी करेंगे and we can forecast the demand. These are the methods of demand forecasting. मैंने almost हर लाइन को आपके साथ कम्युनिकेट करने का ट्राई किया, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ द थ्योरी, मोर ऑफ द थ्योरी, ठीक है? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू,
यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर, जो भी पॉइंट्स है हर एक पॉइंट से आपको जाना है, राइट, एंड प्रिपेयर योर ओन नोट्स. आई विल बी सर्कुलेटिंग, जो मैंने प्रीवियस बैच में जो नोट्स दिए थे एक स्टूडेंट से मैंने लिए, आई विल बी सर्कुलेटिंग दोस नोट्स विथ यू. बियॉन्ड दैट आई विल सजेस्ट कि आप एक बार पढ़ लेना, आज बैठो, आज पूरे पढ़ लेना. ओके, आज खाली हम ये पढ़ेंगे क्या, सपोज 5-6 मेथड से वो पढ़ेंगे, और प्रिपेयर योर ओन पॉइंट्स फॉर द एग्जाम पर्पस, राइट, बिकॉज किस मेथड को क्या नाम दिया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, राइट, कहाँ पे ये अप्लाई करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इवन ए सिंगल सेंटेंस कैन बी एमसीक्यू. इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब तक आप खुद पढ़ोगे नहीं, और मैंने बोला ज्यादा बाकी कुछ मत पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, यू विल गेट, राइट, द लाइक हैंड ओवर द सब्जेक्ट. कल मैंने देखा था, जब मैंने लेट देखा, स्टिल देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 20% स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिए. अगर आप डिमांड सप्लाई के अगर एग्जाम नहीं दे सकते, तो आप मार्केट और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की कब एग्जाम दोगे, बिकॉज दो चैप्टर्स आर अगेन मोर डिफिकल्ट. इंटरेस्टिंग यस, बट अगेन मोर डिफिकल्ट. सो माय सजेशन इज डोंट मिस द एग्जाम्स. और आपके मार्क्स खाली मुझे पता होते हैं, आई डू चेक एवरीवन्स मार्क्स. मैं जाके चेक भी करता हूँ, एंड मैंने कोई लोगों को रिवर्ट भी किया है जहां पे मुझे लगा कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसे नहीं. एंड देयर आर समवन रियली परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली गुड, नो प्रॉब्लम, बट जिनको मार्क्स कम मिले, डोंट गेट डिसर्टन. मार्क्स, देखो मैं बोलता हूँ, एट द एंड आपको 200 भी मार्क्स आते हैं ना, तो भी आप 400 वाले के साथ जाने वाले हो, तो उसका टेंशन मत लेना. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप अपेयर कर रहे हो और एक स्टेप आगे जा रहे हो, फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड होनी चाहिए, बैकवर्ड नहीं. आपने आगे जाना है, पीछे नहीं आना है. समझ में आ रहा है? सो डोंट वरी, कीप ऑन ट्राइंग, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. जो भी क्वेश्चंस गलत गए, अगर उसमें डाउट्स है, यू कैन पिंग मी, आई विल रिवर्ट यू, राइट. अगर कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि मे बी जो मैंने आंसर दिया वो रॉन्ग है, यू कैन ऑल्सो पिंग मी. अगर वो एक्चुअल में रॉन्ग है तो आई विल कम्युनिकेट, नो वरीज एट ऑल. ठीक है, बिकॉज इवन आई एम ऑल्सो इन लर्निंग फेज, आई एम ऑल्सो एक्सपेरिमेंट मेनी थिंग्स. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो गया. यूनिट 2 नहीं, चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो गया. उसमें डिमांड था, सप्लाई था, 3 थे ना, एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ऐसे 3 यूनिट्स हमारे खत्म हुए ऑलमोस्ट. आई हैव स्पेंड 1 एंटायर मंथ ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे, राइट, ऑन दिस चैप्टर. द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आर नॉट दैट मच लेंदी. ये चैप्टर सच्ची में बहुत लेंदी था. So from tomorrow, I will be starting with the production functions, production chapter, and then cost chapter. ठीक है? I expect 2 weeks to maximum 3 weeks for the coming chapter, and उसके बाद वाले चैप्टर को 2 weeks, वो 2 weeks में हो जाता है वो चैप्टर मार्केट वाला. So और फिर लास्ट चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर आर जस्ट 2 लेक्चर्स के चैप्टर्स. जैसे डिमांड फोरकास्टिंग था 2 लेक्चर्स में खत्म हो गया, वैसे वो भी चैप्टर्स है. ठीक है? So on this note, I will end today's lecture. ठीक है? So if anyone has doubt, still you can ask me, you can ping me, I will revert you. Thank you.